Warm welcome and good evening to all at our Evergreen family, our teachers, our parents, our children, our friends, and their family. Every one of you, a very, very warm welcome to this much awaited webinar. Understand your children better during lockdown. Whoever would have ever thought that a microscopic organism has so much of power that it can hold the whole world hostage? And look at us. We are all locked here thanks to this pandemic. We at Evergreen thought, why not make the best use of this time available to us? Why don't we spend this time to bond with people who are close to us, especially our children, be it your 2-year-old or your 20-year-old? It is so important to understand them better, and hence this webinar. We have with us our guest speaker, Mr. Ankur Mehta. This young man, very wise for his age, is a seeker, a spiritual consultant, and a motivational speaker. He has spent over 8 years in the Himalayas and, equipped with a treasure trove of wisdom, he has been conducting webinars and corporate trainings and seminars and motivational talks across realms. And he has touched thousands and thousands of lives. I know you're all waiting to listen to what he has to say on how to understand your child better during lockdown. So without taking any more of your time, I hand over the session to Mr. Ankur. A warm welcome to you, Mr. Mehta, to our Evergreen family. Thank you so much. Thank you so very much, Susha Madam. And on behalf of Pause and Learn family, I thank the whole fraternity of Evergreen Public School, Priyanka Ma'am and her whole team, who has been very instrumental in bringing this session to our beloved parents. I'm also very, in a state of admiration for those who have taken their valuable time out. This itself confirms that you as parents are very much deeply involved with your parenting, and you really want to bring the best out of your child, and therefore you are spending this weekend with all of us. I'll try to do justice with your time. Next 1 hour we will be having some discussion on how can we understand our child better. We will also from thereafter move on to the meditation segment. Yes, we will have of course question and answers from your end. I will be using a PowerPoint presentation to help you understand what I'm going to talk, so that it becomes easy for you to correlate with what we are discussing. So, as Honorable Susha Madam said, that we will be taking a range from 2 years to 20 years. So, yes, there could be parents who are now into their second pregnancy. There could be parents who have younger child as well at home, siblings. So there is a lot of things going on between two siblings or more than that. And of course, whose children are grown up into a teen age where issues are quite different as compared to the young ones. But first of all, I would like to invoke the divine powers, the blessings of the masters. स्कूल गुरुकुल होता है और गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता। तो पहले उसी गुरु शक्ति को नमन कर लेते हैं और फिर हम और आप मिलकर आज के इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। I'll be using both Hindi and English. I hope that will be comfortable with all the parents here. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। Shri Guru Namaha. Allow me to just share my screen with you. You will also be able to watch this presentation along with us, and through those slides we will surely reach to a common understanding and we won't miss what has been discussed. Therefore, I'm using a platform for PowerPoint presentation as well. Just a minute. I'm glad many parents have joined who are not, on Facebook actively, or those who are not been following the Evergreen Public School. Those people also have joined us through Zoom. So you can see multiple windows on the screen at the moment, but not quite long. Here you go. So now we are into
the screen mode, and maybe someone from who is live on the Facebook page can confirm me for a moment if everything is going well on the Facebook page. Maybe a message from your end in the chat window of Zoom. Susha ji, you can confirm because you are being accessing both the places simultaneously. Before I go ahead, just wanted to make a double check if things are reaching out to our Facebook audience quite properly or not. I can see for Zoom audience, yes, it's going on. Is someone from yes, yes. Okay. Thank you, thank you. Everything is going well on the Facebook. All right. So one last thing I should do is mute everyone. Otherwise, it will disturb others. As you can see from the topic, dear parents, we have been talking about, are we growing with our children? क्या हम अपने बच्चों के साथ खुद भी बड़े हो रहे हैं कि नहीं? I think it is quite important to ask as a question to ourselves, because हो ये रहा है बहुत जगह, ये जो दिक्कतें आता है पेरेंट्स के थ्रू कि हमारे बच्चे में चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, वो कहना नहीं मान रहा है, कभी कभी जिद पकड़ लेता है, टेंट्रम शो करता है, कभी रूल्स ब्रेक करता है, कभी हमें जानबूझ के सताता है। इस तरह की चीजें जब सुनने में आती हैं तो स्पष्ट नजर आता है कि व्हेन देयर इज अ पार्टनरशिप बिटवीन टू जनरेशंस, आर बोथ ऑफ देम ग्रोइंग टुगेदर। आई थिंक lies the solution on it. So in due course of journey, I will share with you how a child psychology grows up, and not only child psychology. आप इस बात को, इस पूरे सेशन को अगर बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप खुद को भी इसका पार्टिसिपेशन मान के चलिए, बिकॉज हम सब भी कभी बच्चे थे. So I think let's go through our journey of childhood rather than looking upon at the child right now. खुद के बचपन से शुरू करते हैं. एक बच्चे का जीवन, हम सब जब इस पृथ्वी पर आते हैं तो वी कम एज अ किड, और वहां से हमारी साइकोलॉजी, हमारा मन कैसे डेवलप होता है, हमारे शरीर के साथ साथ हमारी भावनाएं कैसे डेवलप होती हैं, हमारे विचार कैसे डेवलप होते हैं, एंड व्हाट रोल डज द एनवायरनमेंट एंड द पीपल अराउंड अस प्ले इन मेकिंग अस व्हाट वी आर. आई थिंक अगर हम खुद को स्टडी कर रहे हैं, इट विल बी वेरी इजी टू स्टडी द चाइल्ड. इनफैक्ट एनीथिंग यू वांट टू सॉल्व इन दिस वर्ल्ड, फर्स्ट रीड योरसेल्फ, अंडरस्टैंड योरसेल्फ. जितना हम खुद को समझने लगेंगे उतना दूसरे व्यक्ति को समझने लगेंगे, especially when it comes to life. I'm not talking about livelihood. In livelihood, of course, we have our own expertise, our own skills. Someone could be better in something else technically, someone non-technically. Yes, there are many, many options. But when it comes to living life, there are no much options. It is just one thing, just one single option. Understand yourself and you will be able to solve the problem. तो आज वही कोशिश करते हैं. अगले 20-25 मिनट में मैं आपको इस प्रेजेंटेशन से गो थ्रू करवाता हूँ और फिर आपके क्वेश्चन आंसर होंगे, मेडिटेशन करेंगे छोटा सा. फील फ्री टू एक्सप्रेस योर व्यूज, योर क्वेश्चंस. वी कैन टुगेदर श्योरली फाइंड बेटर सॉल्यूशंस देन व्हाट वी हैव राइट नाउ. ठीक है, चलिए. एक ह्यूमन इमोशंस की अगर सीरीज बनाएं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो प्राइमरी सीरीज में आपके सामने रख रहा हूँ. मैंने जो ग्रीन यहाँ पर मार्क किए हैं, दे आर एक्चुअली दोज इमोशंस व्हिच आई फील आर मोर डोमिनेंट एंड मोर इम्पॉर्टेंट टू बी केटर्ड. फॉर एग्जाम्पल द इमोशन ऑफ एक्सेप्टेंस. बच्चे की बात मत सोचिए, अभी खुद की बात सोचिए. आज भी इवन एट दिस एज, एट अ पेरेंटल स्टेज ऑफ लाइफ, हम लोग एक्सेप्टेंस चाहते हैं. इट्स द रिक्वायरमेंट एंड नेसेसिटी ऑफ एवरी सोल. हर आत्मा चाहती है कि उसे स्वीकार्यता का भाव मिले, उसे स्वीकारा जाए. अगर अस्वीकार किया जाता है, if we might all have gone through the feeling of rejection in our life. कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है. कोई रिजेक्ट करता है, कोई एक्नॉलेज नहीं करता है. जब कोई अच्छा काम करे और कोई एडमायर करने वाला ना हो, कोई अप्रिशिएट करने वाला ना हो, जब हमारी काम को कोई अप्रूव करने वाला ना हो, तो इंसान का मन दुखी होने लगता है. उसकी आदत बनी हुई है कुछ समय से कि उसे स्वीकार्यता मिले, उसे अप्रिसिएशन मिले. जरूरत से ज्यादा मिल जाती है तो भी दिक्कत है, वो ईगो में बदल जाती है. तो वो भी ध्यान रखना है, उस पर भी आएंगे. लेकिन एटलीस्ट कुछ फंडामेंटल चीजें हमारे लिए आवश्यक हैं. इट्स लाइक जैसे खाने के लिए, शरीर के लिए खाना आवश्यक है. चलो खाना नहीं मिला तो पानी तो बहुत ही आवश्यक है. अरे पानी भी कम मिल जाए लेकिन सांस तो मिलना ही चाहिए. आई बिलीव दीज ग्रीन वंस आर समथिंग विच आर लाइक ब्रेथ फॉर द बॉडी. इट्स इम्पॉर्टेंट टू लिव. सो एक मन को खुश रहने के लिए, मन को ऊंचा उठने के लिए, उसमें उत्साह जगाने के लिए, उल्लास जगाने के लिए, चाहे किसी भी एज के व्यक्ति का मन हो, एक बूढ़ा व्यक्ति हो तो भी. बूढ़े लोगों को क्या चाहिए? ओल्डर जनरेशन, they also require acceptance, acknowledgement, a little admiration for their experience, a little appreciation. A little one is sufficient. ऐसा नहीं है कि उनको बहुत कुछ चाहिए. And something, some feeling that yes, I am being believed in,
आई एम केपेबल, आई एम बीइंग केयर्ड अबाउट। तो ये सारी फीलिंग्स जो हैं ये मनुष्य को ऊंचा उठने में मदद करती हैं, हमारी साइकोलॉजी को डेवलप करने में मदद करती हैं। फॉरगिविंग, आई एम बीइंग हर्ड, आई एम बीइंग हेल्प्ड, आई कैन हेल्प, आई एम बीइंग लिसन्ड, आई कैन लव, आई एम लव्ड, म्यूचुअल, आई एम नीडेड। बहुत बार तो बच्चों के अंदर ये फीलिंग आ जाती है, maybe I'm not needed by my family. They're so very occupied in their work, in their society, in their social world, कि शायद मेरी ज़रूरत ही नहीं है। एक फेसबुक का पोस्ट शायद आपने कईयों ने पढ़ा होगा, व्हाट्सएप या फेसबुक का ही था, कि एक बच्चे ने ये लिखा कि आप क्या बनना चाहते हो, स्कूल में पूछा गया तो उसने कहा मैं मोबाइल फ़ोन बनना चाहता हूँ क्योंकि मेरे माता पिता मुझसे ज़्यादा मोबाइल को गोद में लेके घूमते, तो काश मैं मोबाइल होता तो वो मुझे ज़्यादा प्यार करते, मुझे भी उतना ही प्यार करते। अब देखो, I don't know if it is a real instance or what, but it really has a true meaning, true message for all of us. हम सब चाहते हैं ये, हम आपके पास आएँ, आप हमारे पास आएँ और हम एक दूसरे को नोटिस ना करें, हम एक दूसरे से सुने ही ना ठीक से। हम आप अपने घर में देखिए, कभी पति पत्नी आपस में देखें कि एक जना दूसरे से कुछ कह रहा है और दूसरा व्यक्ति इग्नोरेंस वाले मोड में हो या कहीं ऑक्यूपाइड हो उसका मन और वो ठीक से सुन ना रहा हो, कितना खलता है। अरे हम आपसे कुछ कह रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे। बच्चे को तो और ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है, उनका तो डिवाइन कॉन्शियसनेस भी हाई है, उनका सब कॉन्शियस भी काफ़ी ओपन है, तो दे आर रिसीविंग वेरी स्ट्रांगली, दे आर लर्निंग वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू अस, बिकॉज देयर इज नो मेंटल conscious clutter there, it's all coming in, so whatever we are putting in, it's shaping them. Feeling of reassurance, feeling of being recognized, mutually respected, इस पे मैं आऊँगा थोड़ी देर बाद। रेस्पेक्ट, अगर ये करना सीख लिया हमने, if we can respect our children, believe me friends, हम डेफिनेटली बहुत सारी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, बहुत सारी समस्याओं का समाधान। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को ये करना आना चाहिए, रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। Someone has got an unmute mode in Zoom, please make sure you are on mute mode. मैंने कर दिया, ठीक। Being trusted, being understood, being valued, am I worthy, am I needed, इस तरह की फीलिंग्स, ह्यूमन इमोशंस हैं ये सारे, ये बच्चे के भी हैं, ये आपके भी हैं, मेरे भी हैं, सबके हैं। लेट्स नॉट से कि हम लोग बहुत कोई जैसे ऊंचे सेंट हो गए जिसको इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे को कोई एक्नॉलेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमें कोई एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हम कोई बहुत बड़े संत महात्मा नहीं हो गए। वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन इमोशंस इन अ ह्यूमन लाइफ, तो सुपर ह्यूमन की भी बात नहीं कर रहे। हमारे बच्चे कैसे इस दौर से गुजरते हैं, एक मनुष्य का मन कैसे इस पूरे प्रक्रिया से गुजरता है, आइए क्विकली देखते हैं। सोशल एंड इमोशनल स्किल्स, और वो भी विद स्पेशल रेफरेंस टू उनकी एजिंग, उनकी स्कूलिंग, सब के हिसाब से देखेंगे कैसे बच्चा जो अपने आप को सोशली और इमोशनली, माइलस्टोन्स कौन कौन से हैं बच्चे के डेवलपमेंट। क्विकली लेट मी गो थ्रू दिस बिकॉज दिस माइट नॉट बी एप्लीकेबल टू मेनी ऑफ यू, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है बिफोर आई प्रोसीड, आपका बच्चा हो सकता है अभी 5 साल का हो, लेकिन एक दिन वो भी 15 साल का होगा। आपका बच्चा हो सकता है अभी ऑलरेडी टीनेज में हो, लेकिन वो भी कभी 2 महीने 4 महीने का था। इसका मतलब अभी अगर आप इस पूरे फ्लो चार्ट को ठीक से देखते हैं, समझते हैं इस टाइमलाइन को और इन माइलस्टोन्स को अंडरस्टैंड करते हैं, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे कहाँ गलती हुई है या क्या गलती ना हो उसके लिए मुझे क्या प्रिपरेशन करनी है, ताकि रेक्टिफिकेशंस किए जा सकें, आगे वो गलती ना दोहराई जाए, इन चीज़ों का आइडेंटिफिकेशन हो सके। देयरफॉर माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट फ्रॉम बोथ द प्लेटफॉर्म्स एवरग्रीन पब्लिक स्कूल एंड जूम पॉज एंड लर्न, कि आप ये देखिए कि आपका बच्चा किसी भी एज में हो, लेकिन ये आपकी यात्रा है। 2 महीने के जब आप थे, आपका मन कैसे डेवलप हो रहा था, आज जब आप 40 साल के हो गए हैं, 35 साल के हो गए हैं, कैसे आपका मन डेवलप हो रहा है, उसी तरह से उस बच्चे के साथ में डेवलपमेंट हो रहा है। तो आइए पूरी जर्नी को ठीक से अटेंड करते हैं। 2 महीने की एज में, आई विल जस्ट हाईलाइट सम ऑफ दीज, आई वोंट रीड एवरीथिंग, आई जस्ट हाईलाइट सम ऑफ थिंग। अब देखो 2 महीने के बच्चे के अंदर क्या खासियत है, सेल्फ सूदिंग बाय सकिंग हैंड्स एंड फिंगर्स, दिस इज अ साइकोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द चाइल्ड थ्रू बॉडी, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बातचीत करती है। कम्युनिकेशन के लिए वर्ड्स हैं नहीं, लेकिन कम्युनिकेट कर रहे हैं बॉडी से। सेल्फ सूदिंग हम कब करते हैं, जब हमें बाहर से सूदिंग एनवायरनमेंट नहीं मिलता तब। इफ अ चाइल्ड इज सकिंग थंब, मनोविज्ञान ये कहता है, भारतीय मनोविज्ञान ये कहता है, और अब तो वेस्टर्न मनोविज्ञान भी इसको मान रहा है, क्योंकि वेस्टर्न साइकोलॉजी बस 100 साल पुरानी है, 100 साल भी नहीं है। वर्ल्ड वॉर के बाद में फ्रूड नाम के एक साइकोलॉजिस्ट आए और तब उन्होंने माइंड की बात समझाई, और उसके बाद भी बहुत समय तक माइंड और ब्रेन पे चर्चा होती रही, डिबेट होती रही दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज माइंड और नॉट, अनलेस डेनियल गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट ला दिया, तब जाके कहीं समझ में आया कि हाँ, मन भी कोई चीज़ होती है। वरना तो बहस करते रहते थे आए दिन डॉक्टर्स कि नहीं, ब्रेन सब कुछ है, माइंड से कुछ नहीं होता। आज बात कर रहा है मेडिकल साइंस साइकोसोमेटिक डिजीजेस की, कि मन से शरीर पे क्या असर आता है। भारतीय मनोविज्ञान
बहुत पुराना है, मैं उसी को आधार मानकर आपसे बात कर रहा हूँ, अपनी संस्कृति को आधार मान के आपसे बात कर रहा हूँ। क्या कहता है भारतीय मनोविज्ञान कि गुरु अपने शिष्य के मन की बात बिना कहे समझ लेता है, और अगर शिष्य उस स्तर पर अपनी चेतना को ले जाए तो गुरु की बात समझ लेता है। माँ अपने बच्चे की बात बिना कहीं समझ जाती है, उसी माँ को ये पता होता है ये बच्चा सिर्फ ध्यान आकर्षण करने के लिए रो रहा है, अटेंशन सीकिंग के लिए, या सच में भूख लगी है इसलिए रो रहा है, या पीड़ा से दुखी है। अगर बच्चा दुखी है किसी रोग से, किसी पीड़ा से, तो माँ तुरंत समझ जाती है, उसकी वेदना, अंदर संवेदना उसे महसूस होती है। तो ये हमारा मनोविज्ञान है, भारतीय मनोविज्ञान, उसको आधार मानकर ये आपके सामने बात रख रहा हूँ। यदि कोई बच्चा बहुत ज्यादा अंगूठा चूसता है, बहुत ज्यादा वो अपने हाथ को मुंह में लेता है, इसका मतलब वही कन्वे कर रहा है, या तो वो भूखा है या फिर वो साइकोलॉजिकली भूखा है, कोई ना कोई भूख तो है, या तो शारीरिक भूख है या उसकी इमोशंस की नीड है जो फुलफिल नहीं हो रही। The child is conveying, I'm not happy, give me a good vibration, good me and happy environment. 2 महीने का बच्चा ये कम्युनिकेट कर रहा है। If we are alert and aware as parents, emotionally skilled, we can create a better environment by just seeing how the child is conveying different things. आप सोचकर देखो, ये बच्चा जो 2 महीने की एज में बातें कन्वे कर रहा है, ये मुंह खोल के बोल सकता है टीन एज में, लेकिन वहाँ गैप आया हुआ है माता पिता और बच्चे के बीच में। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सुनने को मिलते हैं कि हमारा बच्चा 17 साल का हो गया है, हमें लगता है बहुत सेल्फिश हो गया है, वो अपनी आवश्यकताओं के लिए हमारे साथ बैठता है, उसकी स्कूल की फीस दे दो, उसकी ट्यूशन फीस दे दो, उसकी ज़रूरतें पूरी कर दो, उसके अलावा हमारे साथ उसका कोई इमोशनल एक्सचेंज ही नहीं होता, जबकि हमने उसके लिए क्या नहीं किया। ऐसा समस्या पेरेंट्स रखते हैं। ये मैं आपको कुछ कुछ बीच में दे रहा हूँ फिलर्स, ताकि लास्ट में जब चलें तो इनके ऊपर वापस इन थ्रेड्स को पूरा करें। वी विल knit the fabric, don't worry, I'll not lose or keep loose ends anywhere. तो सेल्फ सूदिंग 2 महीने का बच्चा कन्वे कर रहा है। 4 महीने का बच्चा इमिटेट करने लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि वो रीड कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। अनुसरण करना मतलब कॉपी करना। और उसके बाद जब 2-3 साल का बच्चा हो जाता है, इसलिए उसे नकलची बंदर कहते हैं मनुष्य के बच्चे को। उसके बाद वो अनुकरण करता है। अनुकरण मीन्स वो अप्लाई करता है अपनी लर्निंग। ये पेन का ढक्कन ऐसे खोलना है, ये बॉटल का ढक्कन इस तरह खोलना है, चूड़ी वाला ढक्कन है कि फुल वाला ढक्कन है, किस तरह से करना है, वो सारी चीज़ों को फिर अप्लाई करना शुरू करता है। तो इमिटेशन स्टार्ट्स जस्ट एट द एज ऑफ 4 मंथ्स। 9 महीने के बच्चे के अंदर आप देखो तो टॉयज और दूसरी चीज़ों का प्रेफरेंस बढ़ जाता है। 6 महीने के बच्चे को देखो तो अवेयर होने लग जाता है अपने बारे में, यानी कि वो उसको क्या फेमिलियर है क्या स्ट्रेंजर है समझ में आने लगता है, इमोशंस को रिस्पॉन्ड करने लगता है। 9 महीने के बच्चे में देखो स्ट्रेंजर्स के प्रति एंशियस होना एक बेसिक लेवल पर दिखाई देने लगा। ये प्रकृति का गुण है, ताकि वो बच्चा जहाँ से वाइब्रेशन ठीक नहीं मिल रही है वहाँ अपना एक अलर्टनेस, एक अलार्म शो करता है। और 1 साल का होते होते तो फेमिलियर क्या है और अनफेमिलियर क्या है उसके साथ उसका तालमेल बैठाने लग जाता है। और टॉडलर्स और प्री स्कूलर्स में भी थोड़ा टाइम बिता लें, 1.5 से 2 साल की एज के बच्चे। यहाँ टेंट्रम्स थोड़े से बढ़ जाते हैं, इंडिपेंडेंस की बात आने लग जाती है, 1.5 से 2 साल की एज में ही आने लग जाती है। एक सेल्फ आइडेंटिटी क्योंकि डेवलप हो गई है बच्चे की, तो कुछ चीज़ें खुद करना चाहता है। इंडिपेंडेंस डजंट मीन कि वो अपनी मनमर्जी करना चाहता है, वो बस एक्सप्लोर करना चाह रहा है अभी, क्योंकि सीखने की उम्र है। फर्स्ट 5 ईयर्स में बहुत ज़्यादा सीखने की संभावना है, तो वो कैपिटलाइज कर रहा है उस टाइम पे। दे बिकम इंटरेस्टेड इन हैविंग अदर किड्स अराउंड, थोड़ा सा सोशल लर्निंग बढ़ जाती है। 3 से 4 साल की एज में अ वाइडर रेंज ऑफ इमोशंस स्टार्ट्स गेटिंग शोकेस्ड बाय द किड्स। अब यहाँ पर बच्चा स्कूल जाना शुरू कर रहा है, किंडरगार्टन में जा रहा है, वाइडर रेंजेस ऑफ इमोशंस घर में भी दिखा रहा है, वहाँ से भी सीख के आ रहा है और वहाँ पर भी एक्सप्रेस कर रहा है। तो स्कूल और एक नया एनवायरनमेंट बच्चे को मिल रहा है, तो उस किंडरगार्टन में जा रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चे को प्री स्कूल एज में काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं और अपने जैसे बच्चे और दिखाई दे रहे हैं, तो उसका सोशल लर्निंग फास्ट हो रहा है। यहाँ पर भी पेरेंट्स को इन्वॉल्व रहना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या सीख रहा है बच्चा, कैसे सीख रहा है और वो क्या सिखा रहे हैं उनके साथ साथ। ऐसा ना हो कि बच्चा सिर्फ बाहर ही सीख पा रहा है, घर में सीख ही नहीं रहा। बिकॉज सॉरी टू से अनफॉर्चुनेटली इन दिस फास्ट मूविंग लाइफ, जब हमें खुद के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, यहाँ पर वर्किंग पेरेंट्स हैं, दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग हैं या ऑक्यूपाइड हैं, अगर एक पेरेंट घर भी संभाल रहे हैं तो भी ऑक्यूपेंसी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में अनफॉर्चुनेटली वी आउटसोर्स, क्योंकि आजकल हर सारा जमाना जो है ना आउटसोर्सिंग का है, हर चीज़ आउटसोर्स कर दो। आउटसोर्स कौन सी चीज़ की जाती थी पता है? जब आउटसोर्सिंग की इंडस्ट्रीज डेवलप हुई तो आउटसोर्स किया जाता था नॉन वैल्यू एडिंग, जो कंपनी में जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो नॉन वैल्यू एडिंग है, जिसपे हमारा ज़्यादा समय लगता है लेकिन आउटकम इतना नहीं। हम किसी को आउटसोर्स कर दें तो हमारा वैल्यू भी बना रहेगा और हमारे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगेंगे। ये हम किसी और को दे देते हैं, उनको पैसा दे देंगे, पैसा देके करवा लेते हैं। हम लोगों ने, क्षमा करना मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहा हूँ, हमने पेरेंटिंग जैसे महत्वपूर्ण वैल्यूबल चीज़ को स्कूल को आउटसोर्स कर दिया है, टीचर्स को आउटसोर्स कर दिया और हम ये मान के बैठ गए कि हमने फीस भर दी है इसलिए टीचर्स का जिम्मेदारी है कि वो सिखाएं।
हमने बच्चे को इस दुनिया में लाए, जन्म दिया, उनकी फीस भरी, उनकी ज़रूरतें पूरी करी। नाउ इट इज़ समवन्स एल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। घर में बेबी सिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ पे बेबी सिटर बिठा दिया, वो देखेगा या वो देखेगी। देखो हर चीज़ हम आउटसोर्स कर रहे हैं। हमने पेरेंटिंग के महत्वपूर्ण हिस्सों को, वो अब किसी मौसी के साथ में पल रहा है या किसी टीचर के साथ में पल रहा है, उसकी लर्निंग कहाँ ज़्यादा हो रही है, उसका एसोसिएशन ज़्यादा कहाँ हो रहा है? क्योंकि हमारे पास फुर्सत नहीं है पैसे कमाने से, एंगेजमेंट से। आई एम सॉरी, मैं जनरलाइज बात कह रहा हूँ, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकती है, बट अगर जो लोग सही कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और बेहतर बनाइए, और ज़्यादा इन्वॉल्व होइए। एंड देयरफॉर वी वर थैंकिंग सुषा दीदी भी कह रही थी, ये लॉकडाउन में एक अच्छा चीज़ हुआ कि हम लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता पा रहे हैं। We are able to now realize and understand different dimensions of personality of my child, of my spouse, of my elders. अभी तो बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं जहाँ पर ब्रेकडाउन आ रहे हैं लोगों के। लॉकडाउन इज लीडिंग टू ब्रेकडाउन, मेंटल ब्रेकडाउन। चाहे कोई अकेला रह रहा हो, चाहे कोई शादीशुदा हो, चाहे कोई बैचलर हो। आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ह्यूमन इमोशंस। ऑलरेडी सेल्फ हार्मिंग के, सुइसाइड के न्यूज आने लग गए। अभी पुणे की बात है शायद, वन गाय वेंट टू द गार्ड एंड ही सेड मेरे को टेरेस की चाबी दो, मैं पानी चेक करने जा रहा हूँ। टेरेस गया, कूद गया नीचे। 6 महीने से लिव इन रिलेशन में रह रहा था, दोनों जने साथ में थे, दे वांटेड टू गेट मैरिड, पेरेंट्स वर एग्रीइंग अपॉन, समथिंग वेंट रॉन्ग, नो वन नोज व्हाट, ही वेंट अपस्टेयर्स एंड जंप्ड। ये सब आदमी परेशान हो रहा है अभी, क्यों? क्योंकि उसकी इनर जो कैपेसिटी है ना, वो उसने डेवलप नहीं करी। बाहर की स्किल्स बहुत डेवलप कर ली है, पर जीवन जीने की कला डेवलप नहीं कर पाया। द आर्ट ऑफ लिविंग इज गॉन मिसिंग। बच्चा भी ये देख रहा है आसपास, और अगर मेरी क्षमता कम है तो मैं बच्चे को वही दिखा रहा हूँ। मेरी क्षमता सच बोलने की कम है तो मैं बच्चे को झूठ बोलना सिखा रहा हूँ। मेरी क्षमता हार्ड वर्क की कम है तो मैं स्मार्ट वर्क के नाम पे शॉर्टकट्स लेना सिखा रहा हूँ। तो बच्चा भी स्मार्ट वर्क करता है, स्कूल से प्रोजेक्ट मिलता है, वो गूगल पे जाता है, वहां से शॉर्टकट करता है, थोड़ा सा एडिट करता है, स्मार्ट वर्क हो गया। क्यों? पापा मम्मी ने भी सिखाया स्मार्ट वर्क, सब लोग कर रहे हैं स्मार्ट वर्क, तो मैं भी कर लेता हूँ स्मार्ट वर्क। तो ये जो एक हमारा एक बन गया है ट्रेंड, चीज़ों को स्मार्टली करने के नाम पर, या यूँ कह लीजिए आपके शॉर्टकट्स अपनाना, ये पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता। वर्क हार्ड पार्टी हार्ड, इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं। अब इस माइंडसेट से अगर पेरेंट जी रहा है कि एक्साइटमेंट को, फन को हैप्पीनेस बता रहा है, तो बच्चा भी ये कहेगा, आई वांट टू गेट एक्साइटेड, आई वांट टू फील ये वर्ल्डली थिंग्स, मुझे भी ये सब में मजा आएगा। तो वो वही माइंडसेट ले रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये इसी एज से स्टार्ट हो गया, बहुत जल्दी एज से, 2-3 साल की एज में बच्चा पिक कर रहा है। अब बच्चा जो है स्कूल में आ गया, 5-6 साल और बड़ी ग्रेड्स में आ गया, और अब वो जेंडर के बारे में भी अवेयर हो रहा है एट सच यंग एज। उसको अपने जेंडर के प्रति कॉन्शियसनेस डेवलप हो गई है, उसको दूसरे बच्चों के साथ में कन्वर्सेशन करना अच्छा लग रहा है। A child of 5 to 6 years would like to test boundaries. आप अपना बचपन उठाकर देखो, अगर मैं अपने बचपन में जाऊं तो मे बी आर टाइमलाइन वाज अ लिटिल स्लो, नॉट दैट दिस फास्ट। ये आज की टाइमलाइन ज्यादा है। हम लोग 5-6 साल नहीं तो कम से कम 10 साल की एज में तो ऐसा होता था कि किसी की साइकिल उठा के निकल लिए, घर पे किसी का कोई आता था, मुझे याद है, तो हम लोग, वो लूना चलती थी, वी यूज्ड टू जस्ट टेक इट आउट एंड बिना उसकी आवाज किए दूर ले जाके किक पैडल करते थे और उसको चला के ले जाते। हीरो बुक नाम की एक ये आती थी मोटर बाइक जैसी, एयरलेस, उसको हम चलाते थे। कोई अंकल आ जाते घर पे तो चुपचाप निकल के ले जाते। घर वाले गेस्ट अटेंड कर रहे हैं, हम वी आर टेस्टिंग बाउंड्रीज, हम कुछ नया करने की कोशिश करते थे, यहाँ से जंप मारे, वहां चढ़ जाए, ऐसा करें। बच्चा भी करना चाह रहा है। अब हो क्या रहा है देखो, फिर क्षमा करना, होता क्या है, बच्चा अगर मान लो कोई चीज गड़बड़ा देता है ना घर में, तो हमें दिक्कत क्या होती है, अब हमारी कैपेसिटी हो गई काम, हमारे पास है बहुत सारे काम। लॉकडाउन में तो वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है। ऐसे में इट इज नॉट द मटेरियल विच इज एक्चुअली गेटिंग इम्पैक्टेड, वो दिक्कत नहीं है, पर हमें वो दोबारा ठीक करना पड़ जाएगा। अभी मैंने सोफा ठीक किया था, अभी तुमने फिर गंदा कर दिया, अभी मैंने झाड़ू पोछा किया था, अभी तुमने फिर गंदा कर दिया। ये हमारा जो एक पेशेंस बहुत कम हो गया है। तो अल्टीमेटली आर वी ग्रोइंग, देयरफॉर दैट वाज माय क्वेश्चन, क्या मैंने ग्रो किया? और मेरी ग्रोथ पैसे की इंक्रीमेंट से नहीं नापनी चाहिए मुझे। मेरी ग्रोथ इस बात से नहीं नापनी चाहिए कि कल मेरा बच्चा एक्स स्कूल में पढ़ता था, आज वाई स्कूल में पढ़ रहा है, वाई स्कूल इज बेटर देन एक्स, तो मेरी ग्रोथ हो गई और मेरे बच्चे की ग्रोथ हो गई। क्षमा करिएगा, इस पैरामीटर पे बहुत ज्यादा नहीं चल पाएगा गाड़ी, क्योंकि इस पैरामीटर पे जिन्होंने चलाया है ना, उनको ज्यादा सक्सेस नहीं मिली है, इमोशनल सक्सेस नहीं मिली, उनके बच्चों को भी नहीं मिली। सब कुछ प्लेटर में सर्व करके दे दिया, तो देखो एक से एक, किसके नाम नहीं लेना चाहिए, पर कितनों का एग्जांपल देख लो आप, कितने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स पैसा खा के भाग गए, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं आज? जो नहीं पैसा खा के भागा है उसका बच्चा भी क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। लेकिन वो जो गरीबी में पला, वो जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं दिखाई देता, वो कलाम बनता है, वो विनोबा बनता है। क्यों? क्योंकि उनके बैकग्राउंड्स बहुत हम्बल थे एंड इट वाज देयर लर्निंग। एवरी पेरेंट प्लीज मेक अ नोट, read a book by APJ Abdul Kalam ji when he was president,
और कलाम साहब ने अपने, उनकी सेक्रेटरी थी, उनका नाम शायद प्राची था या प्रीति था, जिन्होंने ये सारा एडिट किया बुक को, वो बताते जाते थे, ये लिखती जाती थी, माई जर्नी, प्लीज डू रीड। वो किताब आपको बताएगी कि पेरेंटिंग क्या होनी चाहिए। बहुत खूबसूरत पुस्तक है, हर किताब स्कूल की लाइब्रेरी में होनी चाहिए वो, और एक कॉपी नहीं मल्टीपल कॉपीज होनी चाहिए, हर टीचर को पढ़ना चाहिए, हर बच्चे के साथ इन्वॉल्व होने वाले व्यक्ति को पढ़ना चाहिए कि बच्चे का जीवन बनाने में उसकी क्या महत्वपूर्ण रोल है। कल वो आपका एवरग्रीन का बच्चा कोई कलाम बन सकता है, कल वो कोई बहुत अच्छा देश का प्रेसिडेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई और बन सकता है, कोई समाज सेवक बन सकता है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, लेकिन एथिक्स के आधार पर, वैल्यूज के आधार पर इसमें हमें साझा प्रयास करना होगा। अगर मैं ये कहता रहूं पेरेंट होने के नाते कि स्कूल की जिम्मेदारी है, तो भी गलत बात है। स्कूल ये कहे कि माँ बाप ठीक से नहीं देख रहे हैं, तो ये भी गलत होगा। हम दोनों को मिलकर करना होगा, क्योंकि और फिर देखो, कोई करे ना करे, बच्चा किसका है, जो अपना मानता है उसे बच्चे को, अगर टीचर अपने आप को मानता है कि नहीं बच्चा मेरा है, तो टीचर अपना बेस्ट देगा। मैं मानता हूँ कि मैं बच्चा मेरा है, तो मैं अपना बेस्ट दूंगा एज अ पेरेंट। तो ये ताली मेरे को लगता है दोनों हाथ से बजानी होगी, हैंडशेक करना होगा। इसको आउटसोर्सिंग मोड में मत खेलिए, बच्चे के बचपन को इधर उधर मत शटल कॉक की तरह करिए। वही बच्चा बड़ा हो रहा है, उसके परसेप्शंस डेवलप हो रहे हैं, 7-8 साल की एज में उसको ये डेवलप होने लगा है कि फ्रेंडशिप्स क्या होती हैं, कंपेनियनशिप्स क्या होती हैं, बाहर जाना क्या होता है। एंड दिस चाइल्ड इज नाउ ट्राइंग टू एक्सप्रेस फीलिंग्स विद वर्ड्स, और इसमें कभी कभी वो एग्रेसिव भी हो रहा है, अपसेट भी हो रहा है, इरिटेट भी हो रहा है, बिकॉज उसने घर में देखा है। देखो, पेरेंटिंग में बहुत अच्छी कहावत है जो आप सब ने शायद पढ़ी या सुनी होगी, डू नॉट वरी इफ द चाइल्ड इज नॉट लिसनिंग टू यू, वरी दैट ही और शी इज वॉचिंग यू। बच्चा हमारा कहना नहीं मानता, कोई बात नहीं माने, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बच्चा ये देख रहा है कि आप एक दूसरे का कहना नहीं मानते। पापा कुछ कहते हैं, मम्मी कुछ कहती है, दादी कुछ कहती है, मम्मी कुछ सुनती है, सब जगह गैप्स दिखाई दे रहे हैं उसे। तो उसे लग रहा है कि अपना एक्सप्रेशन करने का तरीका क्या है। इफ यू रेज द वॉइस, इफ यू शो सम एग्रेशन, दैट मीन्स यू आर राइट। क्योंकि घर में तो यही देख रहे हैं कि साहब जब कोई इरिटेट होता है और कोई इरिटेट होकर अपसेट होकर कुछ ऐसा बिहेवियर कंडक्ट करता है, तो उसकी बात मान ली जाती है, या उसकी कम से कम कन्वे तो हो जाती है, माने ना माने वो बात की बात, तो वो भी अपने आप को ऐसे कन्वे करने लग जाता है। He or she is not learning it from outside. Again, let's not blame anyone external. हमारे घर को पहला विद्यालय बनना होगा। विद्यालय, शिक्षालय नहीं। स्कूल्स को भी विद्यालय कहा जा रहा है। शिक्षा इज ऑल अबाउट ब्रेड एंड बटर, विद्या इज ऑल अबाउट वैल्यूज, संस्कार। हम बच्चे को क्या इम्प्रिंट्स दे रहे हैं, क्या संस्कार दे रहे हैं, घर में, बाहर, सोसाइटी में, किन लोगों के साथ वो उठ रहा है, बैठ रहा है, किन से दोस्ती है। अगर आप उसके सबसे अच्छे दोस्त बन जाए तो उसे कोई दोस्त नहीं चाहिए, हकीकत मानिए। पर हो क्या रहा है, 9 से 10 साल के बच्चे में देखो, मे विड्रॉ फ्रॉम फैमिली एक्टिविटीज एंड कन्वर्सेशंस टू स्टार्ट डेवलपिंग देयर ओन आइडेंटिटी। सोच कर देखो थोड़ी देर के लिए, हम सब के साथ बचपन में हुआ है कि हमें ऐसी गैदरिंग में जब जाना पड़ता था जहां हमारे लिए कुछ भी नहीं होता था, नो फन, नो सिबलिंग्स, नो इक्वल एज ग्रुप। क्या करते थे हम लोग? मुझे तो याद है, मम्मी नानी के घर भी जाते थे ना, तो अपनी मम्मी को बहुत कोसते थे। क्यों? जब नानी के घर चले जाते थे, तो नानी के घर सारे मामा मामी सब इकट्ठे हो रहे, मामा मासी लोग सब एक साथ इकट्ठे हो गए। अब हम बच्चे तो इकट्ठे हो गए, लेकिन व्हेन आई नीडेड माय मॉम, शी वाज द डॉटर टू हर मॉम। तो वो बेचारी भी 1 साल बाद मिल रही है, ये बात अब समझ में आती है। तो वो बेचारी भी अपनी माँ से मिलती थी, तो उनको लगता था हम अपनी माँ के साथ पूरा साल भर का सुख दुख बांटे, तो हमें भूल जाती थी। हम बच्चे अपना कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उनसे मतलब नहीं। एक तरह से वो फ्रीडम मिलती थी, पर कहीं ना कहीं ये लगता था मम्मी हमें भूल गई हो आप। नानी के घर जाती हो ना, कम दिन के लिए जाएंगे, तुम हमें भूल जाती हो। अभी हमारा प्यार था हमारी माँ के प्रति, हम चाहते थे कि वो हमें समय दे, और फिर वो समझ जाती थी तो देती थी। लेकिन ये बच्चे के अंदर क्या क्या गुजर सकता है, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ बताने की। जरूरी नहीं है कि हर एक के साथ ऐसा हो कि नानी के घर जाके सेम चीज होती हो, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज हियर इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड योर चाइल्ड। अगर वो वहां पर जाके ये फील करता है कि मेरे पेरेंट्स तो मेरे साथ रह नहीं पाएंगे, मुझे मेरे पेरेंट्स से ज्यादा लगाव नहीं है, एनीवेज वो अपने शोशा के लिए जा रहे हैं, सोशल उसके लिए जा रहे हैं, और हम क्या करेंगे वहां जाके, आप जाइए हमें नहीं जाना। वो कहाँ समय बिताना चाहेगा? जहाँ उससे लोग कनेक्टेड फील कर सकते हो। सोशल मीडिया क्यों इतना पॉपुलर है? बिकॉज 1 सेकंड में लाइक आ जाता है। आप एक फोटो डालिए, 10 लोग तो लाइक करेंगे करेंगे साहब, नहीं लाइक करेंगे हम दूसरी फोटो डाल देंगे, वहां 50 लाइक आ जाएंगे। ये जमाना है। एप्रिसिएशन की हंगर इतनी ज्यादा है, एक्नॉलेजमेंट और अप्रूवल की हंगर इतनी ज्यादा है। इट्स नॉट हंगर, इट्स नीड एक्चुअली, लेकिन वो इतनी सप्रेस्ड रह गई है बचपन से कि आज हम उसे पूरा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे जा जाके। क्योंकि वहां जानने और ना जानने वाला कोई भी व्यक्ति हो, आता जाता कोई भी मुसाफिर हो, उसने अगर हमें लाइक कर दिया, हमें लगता है आई एम वर्दी। वो ह्यूमन इमोशंस की स्लाइड याद रखना। और ये वर्दीनेस, ये एक्नॉलेजमेंट हम ढूंढते ढूंढते कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, अपनों से दूर चले जाते हैं। ऐसे एज में बच्चा क्यूरियस है, आर्ग्यूमेंटेटिव है, थोड़ा सेल्फिश है, थोड़ा रूड है,
ये सब उसी के अंदर आ रहा है। अब ये कहाँ आएगा ज्यादा? जहां पर गैप होगा। अगर कम्युनिकेशन नहीं है, इफ यू आर जस्ट एज्यूमिंग दैट आई हैव डन माय पार्ट एज अ पेरेंट, प्लीज डू नॉट डू सो। एक मैं आपको बहुत, स्कूल की ही ट्रेनिंग चल रही थी, हम रतलाम में गए थे, 3 दिन की ट्रेनिंग थी, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, और वहां पर हमने एक टीचर ने एक क्वेश्चन उठाया, और मैं अब ये आप लोग से कम्युनिकेट तो नहीं कर पाऊंगा, एक तरफा बात कर रहा हूँ, वरना आपसे भी ये पूछता कि कैसे आप इसको सॉल्व करना चाहोगे प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम ये थी, उस टीचर का स्टेटमेंट था, मैं स्टेटमेंट आपको बताता हूँ क्या उनका क्वेश्चन था। एक मेल टीचर है और पेरेंटिंग की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि सर एक बात बताइए, डिजायर्स पे बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि डिजायर्स होना गलत है क्या? मैं एक पिता होने के नाते अपने बेटे से, मेरा बेटा 7 साल का 8 साल का है, उससे एक मेरी डिजायर है। क्या डिजायर है? एक फादर अपनी बात कर रहा है, ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी में सूत्र छुपा है। आप स्लाइड पूरी हो ना हो, आपको सूत्र मिलते चले जा रहे हैं, आप मेरी निवेदनों का लिखते चले जाइएगा कहीं। मैं अपने घर जाता हूँ, नाउ दिस इज द पेरेंट हु इज आस्किंग, अ फादर, मैं अपने घर जाता हूँ, अपने बच्चे को बुलाता हूँ, बच्चा मेरे पास आता है, हम लोग बातचीत करते हैं, फिर बच्चा अपने कमरे में चला जाता है। मेरा ये मन है, मेरी इच्छा है, मेरी डिजायर है, एक पिता होने के नाते मैं उसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्या बच्चा अपने से नहीं आ सकता मेरे पास? वो मेरे पास आए, बैठे, मिले, बातचीत करे। अब ये क्वेश्चन यहीं रुक गया। अब डिस्कशन का तो अपने पास ना ज्यादा समय है, ना प्लेटफॉर्म है ऐसा कि अपन ओपन हाउस डिस्कशन करें, पर इस प्रश्न को कैसे समाधान में लाओगे? इस सिनेरियो को कैसे सॉल्व करोगे? इज हैविंग दिस डिजायर रॉन्ग? मुझे नहीं लगता डिजायर गलत है, ठीक है, एक पिता की इच्छा है, लेकिन पिता का स्टेटमेंट क्या है? मैं अपने घर जाता हूँ, अपने बच्चे को बुलाता हूँ। क्यों भाई, आप क्यों नहीं जा सकते उसके पास? वो अपने कमरे में बैठा होगा, खेल रहा होगा, पढ़ रहा होगा, कैन यू नॉट स्टेप इन टू हिज वर्ल्ड? देखो, इन बच्चों की दुनिया में घुसे ना हम थोड़े देर बच्चे बन के, तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। दिन भर का स्ट्रेस, दिन भर की थकान हमारी दूर हो जाएगी। सोच कर देखो, जब आपका बच्चे जन्म लिया था, आप उसको देखकर इतने खुश हुए थे कि आपकी सारी थकान, सारी चिंताएं दूर हो गई। आज वो बच्चा 10 साल का हो गया, तो आपको उसको देख के और गुस्सा आ रहा है, नालायक हो गया, हमारी बात नहीं सुनता है। क्यों? आज उस बच्चे में वो मासूमियत नहीं रही, तो उसकी मासूमियत कहाँ खो गई? इसका जिम्मेदार कौन? स्कूल, समाज, मीडिया? नहीं, हम। मैं कई बार माता पिता मेरे से कहते हैं, तो मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं इस वाले थ्रेड पे वापस आ रहा हूँ, अभी वो पेरेंट की इच्छा वाले पे। मैं कई बार पेरेंट से पूछता हूँ, आप ये बताइए, तो बच्चा जब आप छोटे थे तो एक गोल गोल सफेद सफेद चंदा को मामा मान लेता था, आपके कहने पर उसका इतना निष्ठा थी, इतनी श्रद्धा थी अपनी माँ में, कि माँ ने कहा बेटा ये चंदा मामा है, हाँ ये चंदा मामा है। आज वो बच्चा आपका कहना नहीं मान रहा, कहना मानना छोड़िए, अपनी बात सुनना ही नहीं चाह रहा, आपसे दूरी बनाए बैठा है। क्यों? अब इसका रिवर्स सोचो, वही बच्चा जब बोल नहीं पाता था, तब आप उसके मन की बात समझ जाती थी। जब उसके पास शब्द नहीं थे अपनी बात रखने के लिए, तो माँ समझ जाती थी, पिता समझ जाता था, इसकी ये आवश्यकता है, कहने से पहले हाजिर हो जाती थी चीज। आज वो कह भी रहा है तो भी हम नहीं सुन पा रहे। क्या हम जिम्मेदार नहीं है इस दूरी के लिए? अगर हमारे किसी भी परिवार में ये समस्या है कि बच्चा कहना नहीं मान रहा है, तो उसकी पूरी साइकोलॉजी के जिम्मेदार हम हैं। पहले हमें इस जिम्मेदारी का भाव उठाना पड़ेगा। अगर हमने ये समझा नहीं और जिम्मेदारी का भाव नहीं उठाया और बहादुरी के कुछ कदम नहीं उठाए, गुरुदेव कहते थे समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, पूरी ईमानदारी से अपना मूल्यांकन करो और अपने पेरेंटिंग का, और कहो कि इसमें कोई कमी नहीं रही, तो सारे प्रश्नों का समाधान एक ही निकलेगा, मुझे अपने अंदर बदलाव लाना है एज अ पेरेंट। अब वो पेरेंट्स यही बदलाव मैंने कहा लाने को, कि सर अगर आप अपने घर जाके बच्चे को बुलाने की बजाय उसके रूम में जाएं, तो आपकी दुनिया वैसे ही स्ट्रेस से भरी है, आपकी दुनिया में वैसे ही इतना तनाव है। हमारा दुनिया को बहुत हमने जो दुनिया बनाई है, साहब क्षमा करिएगा, इसमें तो डिप्रेशन ही डिप्रेशन है। एवरी 40 सेकेंड समबडी कमिट सुसाइड ऑन दिस प्लैनेट। तो हमारी दुनिया तो ऐसी है। अब हम ऐसी दुनिया के अंदर अपने बच्चे को बुलाएं, उससे अच्छा उसकी दुनिया में चलें, उसकी परियों की दुनिया में चलें। बेटियां है आपकी, तो उसको देखो कौन सी डॉल से खेलती है, उसको एक कन्वे करो दैट शी इज योर बारबी डॉल व्हाइल शी हैज अनदर डॉल फॉर हर टू प्ले, और उसके साथ बैठो, खेलो। तो उनसे मेरा अगला प्रश्न था, सर कभी आपने ऐसा किया है? किया भी होगा। बोले हाँ सर, और मेरी प्रश्न का समाधान मिल रहा है, बिकॉज जब भी मैं उसके रूम में जाता हूँ, कभी कभी किया है मैंने ऐसा, तो वो मेरे साथ बहुत खेलता है, मेरे कंधे पे चढ़ जाता है, गोद पे बैठता है। 7-8 साल का बच्चा, ऐसा भी नहीं छोटा बच्चा है, उसकी नीड है भाई, टू बी लव्ड, टू बी अप्रिशिएटेड, समवन रीचेस आउट टू मी, आई एम वर्दी। और यही अगर आपको बुलाए बार बार कोई, आपका बॉस, आपका स्कूल का प्रिंसिपल, आपका ऑफिस का बॉस आपको बार बार अपने कैबिन में बुलाए, हाँ इधर आइए, मिलिए, रिपोर्ट दीजिए, आप आएंगे, रिपोर्ट देंगे, आप कहेंगे जल्दी से रिपोर्ट दो, इसके कैबिन से बाहर निकलोगे। और वही अगर वो आपके पास पहुंचे, तो आपको अच्छा लगेगा? हमारे डेस्क पे आए, अरे सर, अरे मैडम, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग, कैसे हैं, क्या है, आप बताओगे, 4 दूसरी बातें भी होंगी। अभी अगर मैं दिन में
ऑफिस से आ रहा हूँ और अपने बच्चे से आके कह रहा हूँ, हाँ दिन भर क्या किया, मम्मी को तंग तो नहीं किया, स्कूल में तोड़फोड़ तो नहीं मचाई, कोई कंप्लेंट तो नहीं आई, होमवर्क कर लिया क्या, कितने मार्क्स आए। अरे भैया, कोई जज आया है क्या मिलने के लिए, जजमेंट करने के लिए, या मेरा बाप आया है घर? बच्चा यही सोचेगा, जज साहब घर आए हैं, जज साहब को आंसर दीजिए और जल्दी से भागिए इनसे पीछा छुड़ा के। ये टेंडेंसी है, हमारी भी है, औरों की भी है। No one likes to be bullied like this. No one likes to be called upon like this. Even calling a child by name in a very stern manner can convey a lot of ridiculousness towards him or her. The child may read that even if you are not conveying. So please, थोड़ा सा हमें बहुत अवेयरनेस होने की जरूरत है। 11 से 15 साल की एज तो और ज्यादा, क्योंकि अब एडोलेसेंस आ रही है, आजकल 10 साल में प्यूबरिटी आ रही है। देखो बेचारों की एज कितनी फास्ट हो रही है, हार्मोन्स का सिक्रीशन, कितना जंक फूड खिला रहे हो भाई, नहीं मत करो मत करो। बच्चों को हम जो है जितना ज्यादा सात्विक खिलाएंगे, इनफैक्ट पता है इरिटेशन, एंग्जाइटी और ये सब चीजें वाइटामिन की कमी से भी हो जाती है। इन वन ऑफ द रिपोर्ट्स आई रेड, आपके अंदर, हमारे अंदर भी शरीर में हमेशा चिड़चिड़ापन सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं होता। इरिटेशन, मूड अपसेट, एंग्जाइटी आर ऑल्सो बिकॉज ऑफ लेस अमाउंट ऑफ विटामिन डी एंड B12। ये धूप से मिलते हैं। अब हम तो एसी वाली जनरेशन हो गए, हमारे बच्चे तो और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए, तो हम उनको स्वेट आउट नहीं करवा रहे, हम उनको सन नहीं दे रहे, सनलाइट नहीं दे रहे। तो ऐसे में क्या हो रहा है, वो उठेगा फटाफट तैयार होगा, स्कूल की बस में बैठेगा, आपकी कार में बैठेगा, घर से जाएगा एसी में बैठ के। आजकल एसी वाली बसेस हो गई हैं, स्कूल में भी सहूलियत पूरी है, वहां पर भी सेंट्रल एयर कंडीशन। वहां से निकला फिर बस में, फिर घर, कहाँ सनलाइट मिली, कहाँ वाइटामिन मिले। खाने में वैसे ही 50 नखरे हैं, क्योंकि जब वो गर्भ में था तो माँ ने नखरे किए थे। सॉरी, क्षमा करना, मैं थोड़ा सा कटाक्ष वाली बात नहीं कर रहा, सीधी बात कर रहा हूँ, अपना अपना मूल्यांकन कर रहा हूँ। जेनरिक बात है, लेकिन जिसका जहाँ खड़ा हो वहां से, क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ क्या क्या बैकग्राउंड से आप लोगों का जीवन गुजरा है, बट पूरे सम्मान के साथ ये बात कह रहा हूँ। हमने प्रेगनेंसी में जो भूलें करी होंगी, वो आज हम, वहां गढ़ने का समय था साहब, वहां गढ़ने का समय था। और बचपन का जो फर्स्ट 5-6 ईयर्स का टाइम था, वहां गढ़ने का समय था। वहां जो कंपेनियनशिप, जो हमने बॉन्डिंग बना ली थी बच्चे के साथ, वो बॉन्डिंग हमेशा काम आती है। नींव वही थी। अब भी देर नहीं हुई है, 10-15 साल का बच्चा हो गया, 18 साल का हो गया, तो भी चीजें रेक्टिफाई की जा सकती है। हायर स्टडीज में आ गया, 11th-12th में आ गया है, अब तो उसकी इंडिपेंडेंस, उसका सोशल स्टेटस, हर चीज उसको मैटर करती है। अपने आइडियाज हैं कपड़े पहनने के, अपने मैनरिज्म है, उनका मैनरिज्म अलग है, उनका स्टाइल अलग है। तो उनकी इंडिपेंडेंस को अब हम उसमें घुसना चाहें, तो अब हमारे पास दोस्ती और मैत्री का ही रास्ता बचता है। अब हम बाप और माँ बन के बात करेंगे ना, साहब क्षमा करना, वो ज्यादा से ज्यादा कंप्लाइंस में बैठेगा तो चुपचाप बैठ जाएगा। वो घर से जाएगा ये कह के मैं पढ़ने जा रहा हूँ, कहीं और जाके मस्ती करेगा, बंक मारेगा, आपको पता भी नहीं लगने देगा। तो इफ यू वांट योर चाइल्ड टू आउटस्मार्ट यू, योर चॉइस, बट इफ यू वांट टू रियली बिकम अ पार्ट ऑफ हिज जर्नी और हर जर्नी, बिकम वन कंपेनियन, उसके दोस्त बन जाओ। ऐसा दोस्त कि फिर उसे बाहर जाके नहीं पूछना पड़े कि एडोलेसेंस में चेंजेस आ रहे हैं शरीर में, क्या करूं। इसके लिए हमें भी ग्रो होना पड़ेगा एज अ पेरेंट। एक वर्कशॉप थी गुड़गांव में, जब हम पेरेंटिंग की बात कर रहे थे, लगभग 2 साल पहले। एक मदर ने कहा, मेरा बेटा मुझसे आके पूछता है 11 साल की एज में कि जो मेरी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, इनको कैसे हैंडल करूं। मैंने कहा बहुत बधाई, आप बहुत अच्छी माँ है, क्योंकि आप अपने बच्चे को ये समझ दे पाई और ये वातावरण दे पाई, एनवायरमेंट दे पाई कि वो बच्चा आपके पास आया, ना कि इंटरनेट पे ढूंढने गया। फिर हम गाली देते हैं इंटरनेट को, यूट्यूब को, इसको उसको, अरे वहाँ इंफॉर्मेशन है अच्छी बुरी हर तरह की, लेकिन वो वहां तक जाने की नौबत क्यों आई। वी शुड बिकम अवेयर। आज तो चलो इतने सारे अनफॉर्चुनेटली ऐसे केसेस होने लग जाते हैं समाज में कि ये सब एजुकेशन स्कूल का हिस्सा बन गई है। लेकिन तब भी पेरेंट्स के साथ में भी बच्चों को कम से कम ऐसा होना चाहिए कि गुड टच, बैड टच, इस तरह की बातें आए, समझाए जाए बच्चों को, उनको भी इस तरह की एक कम्युनिकेशन चैनल मिलना चाहिए। एक और बड़ा मुद्दा आता है, हाउ बिहेवियर इज बिल्ट। मैं फिर आ रहा हूँ अभी इस वाली बात पर कि कैसे बच्चा रॉन्ग गोल्स आइडेंटिफाई कर लेता है। अगले 10 मिनट में अपनी बात समेटता हूँ और फिर आपके साथ क्वेश्चन एंड आंसर्स लेता हूँ। हाउ डज अ बिहेवियर गेट बिल्ट। हम कोई भी व्यवहार बदलना चाहते हैं, क्योंकि एक मोटा मुद्दा आता है पेरेंट्स का, मेरे बच्चे का ये व्यवहार, अमुक व्यवहार, कोई भी व्यवहार हो सकता है, कोई भी उसकी आदत हो सकती है, टीवी देखने की, खाना न खाने की, बुरे शब्दों का इस्तेमाल करने की, किसी से लड़ लेने की, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। किसी भी बिहेवियर को चेंज करना है अगर, कहाँ से शुरू करें, क्योंकि एक कॉमन बात आती है। बिहेवियर बनता कैसे, आपका और हमारा भी कोई ना कोई बिहेवियर है। सबसे पहले एक घटना घटित होती है, कोई भी एक इवेंट होगा, और उस इवेंट के साथ में, हर इवेंट हम याद नहीं रखते, हम वो इवेंट याद रखते हैं जिसमें हमारा इमोशनल कनेक्ट बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे याद है आज भी कि हमारी क्लास में एक बच्चा था जो थोड़ा बुली करता था सबको। एक दिन उसने मैंने क्लास में कुछ ज्यादा आंसर्स देने की कोशिश करी। मैं और एक मेरा दोस्त था अभिषेक, तो हम लोग बहुत अच्छे साथ में पढ़ते थे, नोट्स बनाते थे, और है ना, टीचर को इम्प्रेस करेंगे तो हमें अच्छे आंसर्स मिलेंगे, अच्छे आंसर्स देंगे, एक होता है ना रिकॉग्निशन मिलेगा, वो सब ऐसा था बचपन में।
अब वो बच्चे ने आके, उसका नाम था सुनील गोदारा, मुझे आज भी नाम याद है, और बहुत सारी घटनाएं हुई होंगी लेकिन ये घटना स्पेसिफिकली इसलिए याद है कि उसने मेरे को एक दिन बाहर बुलाया प्लेग्राउंड में, और मैं बोला थोड़ा सा पीछे हट के खड़ा हो, इतना नजदीक क्यों खड़ा है, मैं पीछे खड़ा हो, और उसने खींच के गाल पे चांटा मारा। मुझे वो घटना आज भी याद है। क्यों? उसके साथ मेरा एक इमोशन कनेक्ट हो गया। Now when there is an emotional bonding with an instance which has happened in your child's life, which could be with you, which could be without you. बच्चा कहीं सड़क क्रॉस कर रहा था, एकदम से कोई गाड़ी ने आके हॉन्क किया, वो डर गया। बच्चा स्कूल में बुली हो गया, बच्चे ने स्कूल में एप्रिसिएशन मिला, घर आया, आपने कुछ कहना था लेकिन नहीं कहा, उससे वो इमोशनली हर्ट हो गया। एनीवेयर, कुड बी एनीवेयर, बाजार गया था, वहां हो सकता है, घर में हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की बात कर रहे हैं, हर तरह का इमोशन उसको मिल रहा है। और वो इमोशन किसी इवेंट के साथ जब वो कोरिलेट करता है स्ट्रांगली, तो उसकी एक बिलीफ सिस्टम डेवलप हो जाती है। अगर लोग तुम्हारी पिटाई कर रहे हैं तो तुम्हें आंसर नहीं देना चाहिए, इट्स बेटर टू बी इंट्रोवर्ट, बेटर टू बी कवर्ड, तो चुपचाप बैठो, क्लास में मत दो जवाब। तो हमने वो अपना लिया थोड़े समय के लिए, फिर हमें छटपटाहट होने लगी, हमने कहा नहीं हम तो नहीं करेंगे ऐसा, तो हमने पिताजी से कहा, पेरेंट्स से कहा, टीचर से कहा, तरीके से जो भी हुआ। खैर, लेकिन एक बिलीफ सिस्टम हमारा कैसे बन रहा है, दैट इज द इशू हियर। हमारा कोई भी बिलीफ तब बनता है जब हमारा कोई इमोशन किसी इवेंट के साथ में मैं बचपन में, मुझे याद है, नॉनवेज खाता था। एग्जाम से पहले हमारे घर में नहीं बनता था, पड़ोस में एक आंटी बनाती थी, तो कभी कभी जब वो बनाती थी हमारे घर आता था। तो जब एक दिन मैंने खाया, आई वाज आई थिंक 7 years old और 7 or 8, और एग्जाम था अगले दिन, मेरा एग्जाम बहुत बुरा गया, और मैंने आने के बाद ये बिलीफ डेवलप कर लिया कि नॉनवेज खाने से मेरा एग्जाम गलत हुआ, मैंने किसी जानवर की हत्या होने में हेल्प करी और उसमें खाया उसे। तो मेरा एक इमोशनल उस इवेंट से घटना, इवेंट क्या था, मेरा एग्जाम अच्छा ना होना, इमोशन क्या कनेक्ट हुआ, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ अ रॉन्ग थिंग, बिलीफ क्या हुआ, लेट मी क्विट नॉनवेज, ये मेरा बिहेवियर बन गया कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। ठीक, अब यही बच्चे के साथ हो रहा है। अब मैं फिर क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, खुद ही आंसर करता हूँ। इफ यू वांट टू चेंज द बिहेवियर इज जस्ट एन आउटकम, इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ अ सर्टेन सीरीज ऑफ इवेंट्स वेयर इमोशंस आर इन्वॉल्व्ड। इफ आई वर टू चेंज द बिहेवियर ऑफ एनी पर्सन और माई सेल्फ, हमारे ऊपर भी अप्लाई हो रहा है, कैसे करूं? ए, बच्चा टीवी देख रहा है, टीवी का कनेक्शन कटवा दो। बच्चा कहना नहीं मान रहा है, उसको उसकी फैसिलिटीज कम कर दो। बच्चे के यार दोस्तों से मिलना बंद करा दो। मतलब वी आर सुपर इम्पोजिंग अ स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ बिहेवियर कि हमारी चलेगी, घर में हमारा घर है, रिमोट छुपा दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे बहुत सारे बचकाने प्रयास हम करते रहते हैं। ऐसे बिहेवियर बदलेगा क्या? ऑफिस में भी नहीं बदलेगा किसी का, घर में भी नहीं बदलेगा, आपके ऊपर भी कोई आजमा के देखे, आप भी नहीं बदलेंगे। आप दूसरा को शॉर्टकट अपना लेंगे, यू विल आउटस्मार्ट द सिचुएशन, या फिर आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। दो ही पॉसिबिलिटीज है, बच्चा या तो वीक हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, या फिर ऐसा हो जाएगा। सो बिहेवियर चेंज करने के लिए आपको उसका बिलीफ चेंज करना है। बिलीफ चेंज ऐसे नहीं होगा, बिलीफ बना इमोशन से, इमोशन आया इवेंट से, इवेंट आप नहीं बदल सकते। अंकुर ने बचपन में चांटा खाया, ये उसके पिताजी या कोई दुनिया की सत्ता नहीं बदल सकती, लेकिन उसके साथ जुड़े हुए इमोशन को डेफिनेटली एड्रेस किया जा सकता है। उसको केयरिंग शो, केयर एटीट्यूड शो करके, उसको थोड़ा पैम्पर करके, उसको थोड़ा अच्छा फील करा के उसे उस इमोशनल सेटबैक से वापस बाहर लाया जा सकता है, ताकि उसका बिलीफ चेंज किया जा सके। देयर इज नो नीड टू बी इंट्रोवर्ट, द वर्ल्ड इज मर्सीलेस, कोई बात नहीं, आप उसको करेजियस बनिए, आप ऐसे झगड़ा भी मत करिए, लेकिन ऐसा इंट्रोवर्ट भी मत हो जाइए, एक बैलेंस क्रिएट करिए। ठीक है, बिहेवियर चेंज हो गया है ना। तो इस तरह से अगर आपको बिहेवियर बदलना है अपने बच्चे का, तो ये देखो प्लीज उसका कौन सा इमोशन अनएड्रेस्ड है। वही ह्यूमन इमोशंस जो अनएड्रेस्ड रह रहे हैं वो दिक्कत दे रहे हैं। बी इमोशनली इंटेलिजेंट। इमोशनली इंटेलिजेंट मीन्स आप अपने इमोशंस को भी समझिए, बच्चे के इमोशंस को भी समझिए, दूसरे के इमोशंस को भी समझिए, और ऐसा एक तरीका अपनाइए जो कि विन विन हो दोनों के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बच्चा जो है वो खाने में टेंट्रम्स कर रहा है, यू रियली वांट टू टीच, आप ऐसा करो, उसको ऑप्शंस दो, उसको थोड़ा एम्पावर करो। आप 2-3 ऑप्शंस दे दो, आज कपड़े कौन से पहनोगे ये निकाल रखें, तुम्हारी चॉइस। बच्चे को एम्पावरमेंट भी फील होगा, और आप उसको थोड़ी सी पावर भी दोगे, और उसकी पावर को मिस्टेकनली कहीं इस्तेमाल ना करे, ये भी उसको कन्वे कर दोगे। क्विकली 5 मिनट में कुछ मिस्टेकन गोल्स बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपको समझने के लिए, आप अपने बच्चे को देख पाओगे इन स्लाइड्स के थ्रू। 4 तरह के मिस्टेकन गोल्स होते हैं हमारे बिहेवियर में, क्योंकि हम बिहेवियर चेंज करना चाह रहे हैं। अटेंशन, पावर, रिवेंज एंड अवॉइडेंस। ये किसी भी रिलेशनशिप में, लड़का लड़की एक दूसरे से मिलते हैं, अटेंशन चाहते हैं। क्लासरूम में बैठा होता है टीचर, टीचर भी अटेंशन चाहता है कि बच्चे, मैं इतना मेहनत से पढ़ा रही हूँ, अटेंड करें अच्छे से, दे शुड अटेंड द क्लास सिंसियरली। बच्चा भी चाह रहा है कि टीचर मेरे इमोशंस को भी अटेंड करे, कुछ इस तरह से पढ़ा दे कि मुझे समझ में भी आ जाए। बच्चा भी यही घर पे कह रहा है, माँ बाप भी एक दूसरे से यही समझना चाह रहे हैं। किसी भी जनरेशन में कहीं भी अप्लाई कर लो, दिस इज द प्राइमरी थिंग विच वी नीड। अगर ये 4 चीजें समझ गए तो आप, ये तस्वीर देखो, आपको क्या दिखाई दे रहा है।
मैं फिर क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा और सुन नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैं एक तरफा बात करता हूँ। यहाँ पे एक मदर है जो बहुत केयरिंग वे में सोच रही है कि मैं अपने बच्चे को खाना खिला रही हूँ, ब्रेड जैम खिला रही हूँ। हो सकता है इस बच्ची को ब्रेड जैम बहुत पसंद हो। पहले तो ये रेडी टू ईट फूड है, जो यही कन्वे कर रहा है कि माँ को मेरे लिए टाइम ही नहीं है, रेडी टू ईट उठा के ले आई। चलो हो सकता है बच्चे को भी टेस्ट हो, उसका टेस्ट डेवलप करा दिया गया हो कि भाई चलो खा लो फटाफट। लेकिन माँ कर क्या रही है? फोन अटेंड कर रही है। नाउ द चाइल्ड इज ऑब्जर्विंग एंड नोटिसिंग। ये 7 8 10 साल की बच्ची देख रही है, द पर्सन ऑन द फोन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मी ऑन डाइनिंग टेबल। खाना खाने की जगह पर भी मेरी इंपॉर्टेंस कम है, किसी और की ज्यादा है। चाहे वो ऑफिस का बहुत इंपॉर्टेंट कॉल हो साहब, चाहे वो, अब लॉकडाउन ने बता दिया है कि आप कितना भी भागदौड़ कर लीजिए, कोरोना जैसी कोई भी चीज आती है और हमारे को समझा के जाती है। इसे समझा दिया है, देयर इज नो पॉइंट इन रशिंग थिंग्स सो फास्ट। आप अपने परिवार को, अपने आप को समय दीजिए, स्लो डाउन इज बेटर। लॉकडाउन खुलने के बाद भी स्लो डाउन तो रहेगा ही रहेगा। फिर फास्ट में लोग, देखो शराब की दुकानें खुली तो कैसे लोग पागलों की तरह लाइन लगा के खड़े हुए। सरकार को राजस्व बनाना था, थोड़ा सा पैसा बनाना था, रेवेन्यू जनरेट करना था, उन्होंने किया। अब वो ऑनलाइन बेचेंगे, ऐसा क्या, भगवान जाने क्या करना चाहें। कहने का मतलब यही है कि इंसान अपनी वृत्तियों से थोड़ा सा ठीक कर ले। अब ये देखो, ये थोड़ा सा चेंज लाना है। आई नीड यू मॉम, यू आर नॉट देयर टू अटेंड मी। आई नीड यू डैड, यू आर नॉट देयर टू अटेंड मी, यू आर देयर टू अटेंड समवन्स फोन कॉल। मैं कई बार जोकिंगली पूछता हूँ, घर में फोन बजे और छोटा बच्चा हो जो रोने वाला, साल भर का, 1.5 साल का, जिसको खुद अपना काम करना ना आता हो, अभी बहुत छोटा है, हर चीज रो के बताता है, कुछ भूख लगी हो, इधर बच्चा रोए इधर फोन रोए, आप किसको पहले उठाते हो, किसको चुप कराते हो? पहले आदमी फोन को चुप कराने जाता है, देखिए किसका फोन है, बच्चा तो रोता ही रहता है। ऑन अ लाइटर नोट, वी आर प्रिफरिंग people over our child, our social status, our requirement of being upgraded and updated। अरे मैं न्यूज़ इसलिए देख रहा हूँ कि मेरे को अपडेट चाहिए। अरे तुम्हारे बच्चे को भी तो अपडेट चाहिए तुम्हारी, उसको अपनी अपडेट देते हो, उससे अपनी अपडेट लेते हो। अखबार पढ़ रहे हैं सुबह बैठ के, इतना लीजर टाइम है हमारे पास बच्चे के लिए नहीं है। 3 समय जो आप अपने बच्चे के साथ या किसी भी रिलेशनशिप के साथ अगर बिता सके फैमिली में, 3 times, 3 windows where you can connect with the other soul very strongly। A, when the child is just waking up, उस समय पे जाके उसे आवाज देना, अंकुर उठो, इज अ वेरी रॉन्ग वे। आप उसके पास जाके 2 मिनट बैठ जाइए, सर पे हाथ फेरिए, धीरे धीरे उठो, जल्दी स्कूल की बस आने वाली है, उठो तैयार हो, उठो ये करो। सुबह सुबह से शोर मचना शुरू हो जाता है, बहुत गलत। दूसरा विंडो, when you can really connect with your child, please make a note, is your dining table, either lunch or dinner, wherever you are dining together, and that is your sharing time। Morning time is caring time, you care for the child, you care for the emotions, and you say wake up, let's be together, let's start the day together, let's thank everyone, good morning, hello, राम राम, जो बोलना अच्छा लगता है करो। और बच्चे को धीरे से, लेकिन हम ही लेट उठे, अब हमारी नींद लेट खुली, हम ही भाग दौड़ में हैं, हमने उठते फेसबुक में इतना टाइम लगा दिया, व्हाट्सएप में इतना टाइम लगा दिया, अपडेट्स लेने में इतना टाइम लगा दिया कि अब बच्चे को फटाफट 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 कर रहे हैं। बिना नहाए तो हम रसोई बनाने लग जाते हैं, क्या क्या तुम करते हैं। फिर ईटिंग टाइम, दैट इज द शेयरिंग टाइम, द चाइल्ड वांट्स टू शेयर, आज दिन भर में क्या किया, वहां पर साथ बैठिए, उसकी सुनिए, एडवाइस मत करिए, दिस इज नॉट द टाइम टू एडवाइस, जस्ट लेट द चाइल्ड पोर आउट, सही गलत जो उसने किया सुनो उसको। फीलिंग ऑफ अटेंडेड। रात का सोने का टाइम, स्लीपिंग टाइम, इज द डेयरिंग टाइम, व्हेन यू कैन डेयर द चाइल्ड विद गुड स्टोरीज। छोटा बच्चा है तो ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज की इसकी उसकी सुनाओ। बड़ा बेटा है, बड़ी बेटी है, तो उसको कुछ मोटिवेशनल लोगों के बारे में बताओ, छोटा छोटा बोले, पता है कलाम साहब की लाइफ में क्या होता है, ऐसा हुआ, ही फेल्ड, ही वाज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्सिंग, इतना डिप्रेशन में चले गए थे, बट फिर उसके बाद वो ऐसे किया, ये किया, कुछ ऐसा बताओ, बिकॉज दैट इज द विंडो, नाइट टाइम। जब आप अपने बच्चे को जब कुछ अच्छा सिखाते हो तो वो उसके दिमाग में जाता है और वो रात भर उसके दिमाग के उसके सबकॉन्शियस को रीवायर करता है। नाउ साइंस हैज प्रूवन इट, how your subconscious is getting rewired, how your brain is getting rewired when you are about to sleep। उस समय पर जो इनपुट्स आएंगे वो इम्पोर्टेंट। तो अटेंशन जब बच्चे को नहीं मिलती है तो बच्चा करता क्या है, दे यूज नेगेटिव वेज, बिकॉज देयर गोल इज अटेंशन। नेगेटिव वे में ही सही, लेकिन मेरे माता पिता, मेरे घर वाले मुझे अटेंड करें, मेरी बात सुने। तो मेथड क्या है, annoy the parent। So if your child is annoying you, you know that the child is asking for attention। Now what do we usually do? You must pay attention or I will not eat। अरे तेरी पसंद का खाना बनाया था, तूने तो बताया था तेरे तो इतना पसंद है, खा ले। नहीं मैं नहीं खाऊंगी, क्यों? आप मुझे अटेंशन नहीं दे रहे। वो डायरेक्ट नहीं कह रहा, इनडायरेक्टली कह रहा। And this or else, if you do not do this or else, it consists of relatively harmless but provocative behaviors। ये provocative behaviors हैं, आप provoke हो जाते हो, अब आप कभी डांट देते हो, कभी पनिश कर देते हो, कभी हाथ उठ जाता है, कभी उसको नाम चिपकाते हो, मेरा कहना नहीं मानती, मेरा कहना नहीं मानता, चिल्लाते हैं, ये करते हैं। बच्चा सोचता है यस आई हैव वन द बैटल। क्यों?
क्योंकि बच्चे याद रखिएगा, फॉर अ चाइल्ड अ नेगेटिव अटेंशन इज बेटर देन नन। इतना ज्यादा अटेंशन सीकिंग होती है। अब कुछ होते हैं जो ओवर अटेंशन देते रहते हैं, वो इतना पैम्पर कर देते हैं कि बच्चा हाथ से भी निकल जाता है, वो बिगाड़ देते हैं। वो भी नहीं करना। इसलिए ये एक योग है, ये पेरेंटिंग एक योग है, एक बैलेंस है जिसे हमें जीना चाहिए। योग इज इक्वल्स टू बैलेंस इन लाइफ। इट्स नॉट अबाउट आसनास और प्राणायाम ओनली। वो चीजें अच्छी हैं शरीर और मन को अच्छा रखने के लिए, लेकिन उसके बाद हम उसे जीवन में कैसे अपना रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड पेरेंटिंग तो मुझे लगता है एक ऐसी गोल्डन फेज है जहां हम बच्चे के साथ में अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, इवॉल्व कर सकते हैं। जो गलतियां जो हम चाहते थे हमारे माता पिता हमारे लिए करें, कम से कम वही अच्छा कर ले। लेकिन वहां पर भी हम क्या देखते हैं, गणित लगाते हैं। हमने जो सुविधाएं नहीं पाई वो सुविधाएं बच्चों को देते हैं। प्लीज, सुविधाओं से कोई रिलेशनशिप नहीं बनता है। आप किसी के लिए महल खड़ा कर दीजिए या ताजमहल खड़ा कर दीजिए। It is about the emotions which you share with the person, not about what you build for them. They can build it and build it better than us if we have given them that value, if we have given that vidya, that आत्मीयता। मुझे ये लोगो बड़ा पसंद आता है इनका, एवरग्रीन पब्लिक स्कूल का, आत्मनः वृद्धि। अरे आत्मीयता की वृद्धि करो, अपने सोल के लेवल पर इवोल्यूशन की बात करो। दैट इज द ओनली सोल्यूशन। ये सब लंबी कहानी का सोल्यूशन उन्होंने वहां लिखा हुआ है अपने लोगों में, आत्मनः वृद्धि। बस ये डेवलप कर लिया अगर हमने, तो आप देखेंगे कि पेरेंट चाइल्ड साइकिल जो है सुंदर बन जाएगी। हमें करना क्या चाहिए इस स्टेज पे, अगर बच्चा है और उसने एक मिस्टेकन गोल बना लिया, मिस्टेकन गोल क्या बना लिया, अनॉय द पेरेंट, तो वो हमारी बात सुनेंगे। कम से कम चाटा मारने आएंगे, डांटने आएंगे, कम से कम हमारी तरफ देखेंगे तो सही, वरना टीवी में घुसे रहते हैं। If children need attention, we must give it to them, but on our own terms. Don't give over attention, और एक बैलेंस वे में उनको अटेंशन देने की कोशिश करो। दूसरा, अगर यहाँ से बात बिगड़ जाती है तो लेवल 2 पावर। अब बच्चा पावर गेम में आ जाता है। पावर गेम क्या है, यू ब्रेक द रूल, आई विल ब्रेक इट। देखते हैं किसकी ताकत ज्यादा है। आपने रूल बनाया, उसने ब्रेक करने लग गया। तो अब देखो, पावरलेस होना एक ऐसी फीलिंग है जो किसी को नहीं अच्छी लगती। अगर हम और आप भी पावरलेस हो जाएं, हमारा देश डेमोक्रेसी है इसलिए हम और आप बहुत सुखी हैं। नहीं तो ऐसे देश में होते जहाँ ऑटोक्रेसी होती, तानाशाही होती, तो हम और आप पावरलेस फीलिंग बहुत बुरी फीलिंग होती है। आदमी नहीं हेल्पलेस फील नहीं करना चाहता। बेसिकली पावरलेस इज नॉट अ वेरी गुड फीलिंग। और बच्चों के साथ क्या है, इनके ये पावरलेस कुछ होते भी हैं और कुछ हद तक इन्हें होना भी चाहिए, वरना ये कभी आग से खेलेंगे, कभी किसी हार्मलेस चीज से खेलेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा इनकी पावर्स कम होनी भी चाहिए। लेकिन ये फीलिंग इनके अंदर से निकालनी है, तो क्या करो, उनको एंगेज करो अच्छी चीजों में। ये क्या करते हैं, जब देखते हैं कि हमें एंगेज नहीं किया जा रहा, तो हम पे बॉसिंग की जा रही है, रेगुलरली हमें बताया जा रहा है ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, इसमें भी टोक रहे हैं, ये हार्मफुल है, वो हार्मफुल है, तो हम क्या करें फिर? हमें अटेंड भी नहीं कर रहे हो, हमें कुछ करने भी नहीं दे रहे, अटेंशन से बात बिगड़ गई है। तो चिल्ड्रन एंड पीपल इन जनरल लाइक टू फील दैट दे हैव सम कंट्रोल ऑन देमसेल्व्स। इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। तो ऐसे में बच्चा करता क्या है, बच्चा रूल्स ब्रेक करने लगता है। जो चीज मना करोगे वो ज्यादा करेगा। ऐसे में पेरेंट को क्या करना चाहिए, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, उनको एम्पावरमेंट फील कराने के लिए आप ऑप्शंस देने लगो। ये खाने में 2 ऑप्शन है, क्या खाओगे, ये पहनने में ऑप्शन है, क्या पहनोगे, यहाँ घूमने चलना है, कौन सी जगह चलना चाहोगे। तो बच्चे को इन्वॉल्वमेंट फील होगा। बेडशीट बिछाने से लेकर घर के कामकाज से लेकर उसे इन्वॉल्व करो। नहीं, उसे हमने आउटसोर्स कर रखा है, घर में मेड आती है वो करेगी। अरे भैया, कभी फ्रिज का सामान खुद भी लगा लो, बैठ के बच्चे को साथ बिठाओ, उसको सिखाओ कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है। उसको सिखाओ कि जब फिर अलमारी में कपड़े लगाते हैं तो कौन से कपड़े कहाँ लगाए जाते हैं और उसका क्या मतलब है। ये सेग्रीगेशन उसके दिमाग में वो रीड कर रहा है, समझ रहा है। बहुत ज़्यादा पावर दे दोगे, वो पावर ड्रंक हो जाएंगे तो भी दिक्कत है। तो वो बहुत है, और बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करेंगे, वीक फील करेंगे या रिबेलियस फील करेंगे, वो भी ठीक नहीं है। तो अगेन इट्स अ बैलेंस। बच्चे को लिमिटेड पावर दो। व्हेन पेरेंट्स गिव चॉइसेस टू देयर चिल्ड्रन और असाइन देम सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हाँ देख, ये पैसे लेके जा, सामान लेके आ, कितना देखते तू पैसा ठीक से संभाल पाता है कि नहीं। करो एक्सपेरिमेंट। हमारे माँ बाप ने आपने सबने किए हैं ना। फिर हम हिसाब से रखते थे कि नहीं, ईमानदारी से वापस लाते थे कि नहीं, रास्ते में चॉकलेट खा लेते थे या क्या करते थे, वो सब देखता था बाप बैठ के घर में कि क्या करके आया बेटा, ठीक से करके आया, हाँ ठीक, शाबाश, अब और करना, अगली बार और जिम्मेदारी देंगे। तो ये धीरे धीरे पावर ट्रांसफर कर रहे हैं। हमारी ईगो हमें पावर देने ही नहीं देती, हम तो खुद ही अपनी पावर लगाते हैं। ऐसा नहीं होता जब, तो फिर बच्चा रिवेंज में चला जाता है। रिवेंज मतलब अब मैं वो करूंगा जिससे आपको ठेस लगे। आप चाहते हो मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, मैं स्कूल में फेल होके आऊंगा। आप स्कूल को कोसते हो, बच्चे को क्या पढ़ाते नहीं हो आप लोग? अरे नहीं भाई, यहाँ तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, क्लासरूम में तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है, तो एग्जाम में क्या होता है इसको? अरे भाई हमें क्या पता, अरे आप ध्यान नहीं देते। ये होता है। बच्चा जानबूझ के फेल हो रहा है, बच्चा जानबूझ के झगड़ा करके आ रहा है, जानबूझ के चोट लगा के आ रहा है, जानबूझ के कपड़े गंदे करके आ रहा है। ऐसी हर चीज जिससे माँ या पिता को दुख होता हो, हर्ट होता हो, बच्चा वो कर रहा है। क्यों? उस बेचारे को अटेंशन चाहिए थी, वो मिली नहीं, तो वो रिवेंज लेने लग गया। व्हाट शुड वी डू? अर्न योर रिस्पेक्ट बैक। बहुत जरूरी है।
अपना सम्मान वापस पाना। अब बच्चे ने हमारे अपमान करना शुरू कर दिया, हमें दुखी करना शुरू कर दिया। भीतर से वो बेचारा हमारे प्यार के लिए लालायित था, लेकिन हमने उसे इतना इग्नोर किया, इतना कॉर्नर कर दिया, इतना उसको वर्थलेस कर दिया that you're worthless for us, knowingly or unknowingly. Now become aware about it, convey or earn back your respect, which will come with communication. क्योंकि अगर ये चीज हाथ से चली गई, ये स्टेज, यहाँ तक भी रिकवरी हो सकती है। Fourth mistaken goal is very very difficult, avoidance. The child will start avoiding you. ऐसे परिवार मैंने देखे हैं मित्रों जहां पर बच्चे टूट गए हैं, थैंकफुली उन्होंने सुसाइड नहीं किया है, लेकिन अवॉइड कर देते हैं। बेल बज रही है, बच्चे को सोफे पे लेटा है बाहर, वो कह रहे हैं कि आप जाके गेट खोल दो, देखो कौन है, सुन ही नहीं रहा, जानबूझ के अवॉइड। आप बात कर रहे हो कहीं और देख रहा है। वो हो गया आपका, हो गई आपकी बात पूरी, ठीक है, जिस दिन मैं कमाने लगूंगा ना, मैं अपना खुद बना लूंगा। ऐसे ऐसे जवाब दे रहा है बच्चा। फिर माँ बाप रोते हुए आते हैं, आप हमारे बच्चे को समझा दीजिए, इसमें कोई जादू की छड़ी घुमा के परिवर्तन ला दीजिए। अरे साहब, ये जब शुरू हुआ था तब आप कहाँ थे? तब आपको उसका दुख कन्वे नहीं हो रहा था। आज वो आपको दुखी कर रहा है तो आप दुखी होकर हमारे पास आ गए कि कोई काउंसिल कर दे, कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस दे दे। और वो हर्ट करता है खुद को, वो खाना छोड़ देगा, बातचीत छोड़ देगा, बाल नहीं कटवाएगा, दाढ़ी नहीं बनवाएगा, फटे कपड़े पहनेगा, इसीलिए नहीं कि उसे फैशन करना पसंद है या उसके दोस्त उससे कहते हैं कि हाँ बहुत स्मार्ट लग रहे हो, ऐसा करो, इसीलिए कि इससे आपको दुख होता है और उसे पता है कि अब आप देखो पापा कि दुख किसे कहते हैं। मेरे पास हकीकत मानो ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो कहते हैं, एक बच्चा आया तन्मय नाम का, उसके मैं अपने माता पिता को हर्ट करना चाहता हूँ, अपने कजन्स को हर्ट, वो स्कूल में पढ़ता था, सेम स्कूल में, मतलब उसके कजन्स भी और वो भी। अब बचपन में इतनी उनकी कंपैरिजंस के, देख तेरा कजन कितना स्मार्ट है, वो कितना अच्छा पढ़ता है, वो कितना अच्छा करता है, कि वो स्कूल में जाके पीट देता था अपने कजन को। टीचर्स कंप्लेन करते थे, इतना शांत बच्चा है। काउंसलर से हम लोग मिले, बॉम्बे का स्कूल है, नाम नहीं लूंगा, काउंसलर से मिले, उन्होंने कहा, सुषमा मैडम ने, कि भैया इतना बढ़िया बच्चा है, क्या बताएं आप, बहुत सिंसियर है, कभी कंप्लेन नहीं है, पर पता नहीं क्या होता है, इन्हीं लोगों के साथ झगड़ा करता है जबकि इसी घर के लोग हैं। हमने कहा इनके पेरेंट्स से पूछो हुआ क्या है इसके साथ, बचपन में अवॉइड करते रहे होंगे, ये सारी एक स्थिति बनती आ रही होगी। तो यहाँ अगर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पर आकर दोस्तों मुश्किल तो होती है, लेकिन रिस्पॉन्स हमें अच्छा बनाना होगा। हम क्या रिस्पॉन्स करते हैं, वी फील सॉरी फॉर द चाइल्ड, अरे अब क्या बताएं, दुनिया के सारे बच्चे ऐसे ही हैं, हमारा बच्चा भी ऐसा निकला, नालायक निकला। नहीं, ऐसा मत करिए, ये मत करिए। रादर व्हाट वी शुड डू इज, हमें उसे कन्वे करना है यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज। इन एक्चुअलिटी दैट चाइल्ड इज एक्चुअली हाईली मोटिवेटेड बाय नॉट टू सक्सीड। उसने सब गिव अप कर दिया है, बस जिंदा है यूं समझ लो, लेकिन वो कुछ करना नहीं चाह रहा, कोई उत्साह नहीं बचा है। ऐसे में हमें बच्चे को ये कन्वे करना है कि वी विल नॉट गिव अप ऑन यू, communicate, that is the key. We might even say something like this, you may believe that you can't do things, but I don't believe it, and I'm going to work with you until you get it, no matter how long it takes. I can't make you believe in yourself, but you also can't make me not believe in your abilities. तो बच्चे को कहीं ये कन्वे करो कि तुम्हारी एबिलिटीज मैं देख पा रहा हूँ, हालांकि करना पहले ही चाहिए। मित्रों, थॉमस अल्वा एडिसन, नहीं सॉरी, वॉल्ट डिज्नी इसका था, हाँ थॉमस अल्वा एडिसन का ही था। ऐसा कहानी है, कुछ लोग कहते हैं झूठ है भगवान जाने, लेकिन बात सत्य हो चाहे झूठ हो, घटना जो भी हो, लेकिन मैसेज सत्य है कि उनके स्कूल से एक लेटर आ गया था कि दिस चाइल्ड इज नॉट गुड इनफ टू स्टडी एंड ऑल। और उनकी माँ ने वो लेटर पढ़ा और रो रही, तो उसने पूछा क्या माँ तुम क्यों रो रही है, और उसने माँ ने कहा कि बेटा तेरी इतनी तारीफ लिख के भेजी है, मैं बता नहीं सकती, और मैं सोचती हूँ तू खुद पढ़ाकर तू क्यों जाता है स्कूल, तू खुद ही कर ले। स्कूल ने निकाल दिया था बेचारे को, माँ दुखी हो गई और उसने वो चिट्ठी छुपा दी। ऐसा कहते हैं कि एडिसन को जब माँ मर गई उसके बाद अपने माता जी के सामान को देखा तो उसमें वो चिट्ठी मिली, तब तक वो बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए थे, 1000 से ज्यादा पेटेंट है उस आदमी के पास, बिजली उसने जलाई, सब कुछ किया। और एडिसन ने वो चिट्ठी पढ़ी तो बोला ये चिट्ठी ने मुझे बनाया है, तो इस चिट्ठी में लिखा था कि आई एम वर्थलेस, पर मेरी माँ ने कहा कि नहीं, आई कैन सी योर एबिलिटीज, जा कर। दिस इज व्हाट वी नीड टू कन्वे। और हमें भी अगर किसी ने कन्वे किया था तो इसीलिए आज हमारा कॉन्फिडेंस अगर हाई है, अगर आप पाते हो कि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग है, आपको समाज में अच्छा एक्सेप्टेंस है, आप कम्युनिकेट अच्छे से कर पाते हो, क्यों? क्योंकि आपके माँ बाप ने, आपके किसी टीचर ने, आपके किसी वेलविशर ने आपकी उन एबिलिटीज को हाईलाइट करके आपसे कहा था यस दिस इज व्हाट यू आर, गो अहेड। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस जगा दिया। मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ अपनी एज ग्रुप के, 38-40 साल के हो गए, वो कहते हैं मैं रिस्क नहीं ले पाता हूँ क्योंकि मैं पीछे मुड़ के जब देखता हूँ तो मेरे को बचपन से याद आता है, मेरे माँ बाप ने मेरे रिस्क लेने की जब एक्टिविटीज होती थी, जब मैं कोशिश करता था, तो मुझे डिस्करेज इतना ज्यादा कर दिया था कि आज मेरे अंदर वो हिम्मत ही नहीं है कि मैं रिस्क ले सकूँ। मैं तुम लोगों को लेके देखता हूँ कि तुमने कहा बेंगलोर से जॉब छोड़कर हिमालय चले गए, 9 साल वहां रहने चले गए बिना किसी हिसाब से, वहां से चल दिए, फिर पूना के बैठ गए, पॉज एंड लर्न शुरू कर दिया। ये सब तुम इतने वेरिएशंस जो लाते हो लाइफ में, ये पैटर्न चेंज हम नहीं कर पाते। मैंने उनसे पूछा क्यों, और उसने जब बात की तो मैंने रिफ्लेक्ट किया, क्या मेरे माँ बाप ने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया, एंड यस आई कुड सी
आज भी अगर मैं कहीं गिरने लगता हूँ, मुझे मालूम है कि आई कैन लुक अपॉन, देयर इज अ फैमिली हुम आई कैन लुक बैक अपॉन। क्या हमारा बच्चा इतना दुखी तो नहीं हो गया कि वो दूर जाके ये सोचता है मेरा कोई भी नहीं है, या ठीक है उसने अपने नया परिवार बना लिया, वो उसी में अपना सुख दुख बांट रहा है, वो पीछे मुड़ के देख ही नहीं पा रहा है या देखना नहीं चाह रहा है। ये सोचने की बात है। हम ऐसी किसी भी स्थिति में खुद को नहीं देखना चाहेंगे। इसीलिए द बेसिक इंग्रेडिएंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेसिक इंग्रेडिएंट टू सक्सेसफुल पेरेंटिंग इज द रिलेशनशिप। कोई भी टेक्निक, कोई भी क्विक फिक्स दुनिया की इसे ठीक नहीं कर सकती। सिर्फ आपका इमोशनल बॉन्डिंग बच्चे का कैसे है आपके साथ। और आप अपना आप भी देखो ना, पति पत्नी का देख लो। आज अभी एक न्यूज थी कि कितने डिवोर्स होने वाले हैं लॉकडाउन खुलने के बाद, भगवान जाने। जो सुसाइड नहीं कर रहे हैं वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, जो डिप्रेशन में नहीं गए हैं वो सुसाइड, वो डिवोर्स लेना चाह रहे हैं। इतना ज्यादा दिक्कत आ रही है। साथ एक छत के नीचे रह ही नहीं पा रहे, दिन भर साथ में एक दूसरे को देख रहे हैं। इस कमरे से निकले तो इधर वो दिखाई देगा, उधर से निकले वो दिखाई देगा। छोटी मोटी बात पे तू मैं हो रही है, तुम ऐसा नहीं करती, तुम ऐसा नहीं करती। पेरेंटिंग ऑल द मोर इंपॉर्टेंट हो गई है भैया लॉकडाउन में। बच्चा देख रहा है। Therefore, take a pause and ask yourself, how can I improve my relationship with the child? What mistaken goal is my child using? वो अवॉइडेंस कर रहा है, वो पावर गेम खेल रहा है, वो रिवेंज की जोन में आ गया है, वो सिर्फ एक छोटे से अटेंशन की इच्छा है उसकी। कहाँ पे वो कौन से मिस्टेकन गोल को अपना गोल बनाए बैठा है? एंड अवॉइड द क्वेश्चंस कि मैं इसको क्या पनिशमेंट दूं, मैं इसके इस बिहेवियर को कैसे चेंज करूं। पनिशमेंट इज रियली एन आंसर, कहीं भी नहीं है। अब तो सामाजिक दृष्टि से भी नहीं है। द सूनर वी realize this, the closer we will come to developing a kinder and gentler society. ये मैं स्किप करता हूँ, क्विकली बता देता हूँ। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मैंने बच्चे को जन्म जीवन दिया है तो इसलिए मेरा उस पर अधिकार है। प्लीज इसे छोड़ दीजिए ऐसा सोचना। आपने बच्चे को जीवन नहीं जन्म दिया है, जीवन नहीं दिया है, जीवन भगवान ने दिया। हमने अपने बच्चे को जन्म दिया। माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू टीच एंड प्रोटेक्ट, नहीं, इट्स नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच द चाइल्ड। आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू लर्न विद द चाइल्ड। उसको ये सिखाना है कि हाँ भाई सद विवेक क्या होता है, सही गलत की जांच करना सिखा दो उसे, बाकी उसे करने दो। हमने आपने भी बहुत कमियां हैं, हमने आपने भी बहुत ऐसी त्रुटियां करी हैं जीवन में और उनसे सीखा है, तो वो भी सीखेगा। माई चाइल्ड्स लाइफ वुड बी एज आई मेक इट। ये भी एक मिसकंसेप्शन पेरेंट्स को रहता है, जैसा मैं बनाऊंगा वैसा ही तो बनेगा। नहीं नहीं, जैसा आप बनोगे वैसा वो बनेगा। बच्चे को पत्थर की तरह मत समझो कि उसको जैसा गढ़ना चाहेंगे वैसा गढ़ लेंगे। उसको एक मिट्टी की तरह समझो, उसको वातावरण दे दो। मिट्टी में जब बीज बो देती हो ना, तो बीज अपने आप पनपता है। आप उसमें फल कब आएगा, फूल कब आएगा, ये आप नहीं करते। धीरे धीरे रे बना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो आप बस उसे देते रहते हो, नर्सरिंग देते हो। तो इसलिए सही एनवायरनमेंट दीजिए। एज अ पेरेंट आई नो एवरीथिंग। तुम बच्चे हो, तुम्हें नहीं मालूम, ये नोशन हो जाता है। नहीं, आई एम जस्ट बॉर्न अ फ्यू ईयर्स अर्लियर देन द चाइल्ड, so I'm also a learner, you are also a learner. Let's learn together. Let's fail together. Let's succeed together. Child is too young to understand, तो इसलिए हम इग्नोर कर देते हैं उसकी किसी एडवाइस को। ऐसा नहीं, उसके पास भी नॉलेज है। नॉलेज इज नॉट अबाउट बायोलॉजिकल एज ऑफ अ चाइल्ड और एक्सपीरियंस और एक्सपोजर टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड। देयर इज अ लॉट व्हिच अ यंग सोल कैन टीच अस और एन वेरी एल्डरली सोल कैन टीच अस। हम लोग यंगस्टर्स को सीखना चाहिए। मिडिल एज जो जनरेशन है ना, बच्चों से या बुजुर्गों से, इन दो से सीखने का बहुत स्कोप है। एंड आई थिंक पेरेंटिंग इज वन सच वे। एंड एज आई अर्लियर सेड, आत्मन वृद्धि, आत्मन वृद्धि। अगर हम ये भी ध्यान रख लें, अपनी आत्मीयता की वृद्धि और अपनी सोल के इवोल्यूशन के ऊपर फोकस करें, तो हम देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हम रिजॉल्व कर सकते हैं। आई एम सो सॉरी आई टुक अ लिटिल मोर टाइम, 1 hour 8 minutes स्पेसिफिकली। और मेरे टाइम फ्रेम से मैं एक्सीड कर गया। यूजली वी टेक 12 सेशंस टू डिस्कस ऑल दिस इन आवर पेरेंटिंग वर्कशॉप्स, लेकिन ये एक 45 मिनट्स में इसको सम अप करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। हो सकता है आई हैव बीन अ लिटिल फास्ट। आपके कुछ क्वेश्चंस हो, प्लीज डू फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस। तो बताइए आपके क्या प्रश्न हैं। अगर कोई प्रश्न हो तो मैं फेसबुक पेज पर आ रहे हो तो वहाँ भी, और जो जूम पर हमारे साथी हैं वहाँ भी। आई कैन सी 799 कमेंट्स, इज इट ट्रू? 799 बनाएंगे। आई एम सो ग्लैड ऑल यू पेरेंट्स हैव बीन सो रिस्पॉन्सिव। आप अपना समय भी निकाल रहे हो और पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो अब इतने सारे कमेंट्स में क्वेश्चंस कौन से हैं, अगर वो स्पेसिफिकली मैं सुषा जी से अगर कुछ क्वेश्चंस आपने नोट किए हो दीदी, तो आई कैन क्विकली टेक सम ऑफ देम। मेरे और जो दिमाग जूम में हमारे साथ हाँ हाँ जी, दीदी दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था जो आजकल बहुत पेपर में हम पढ़ रहे हैं, about this boys locker room जो incident हुआ है, if you are aware about it, where there are these youngsters, teenagers of some uh, one particular area of Delhi, where they have created an Instagram, uh, it's a private chat where they talk about girls in a very wrong way, in a very objectionable way,
and it is something very, very शायद इस worrisome, a बच्चे ने trend आजकल suspect जो भी कर चल लिया रहा है। है। हाँ जी, हाँ, एक बच्चे ने शायद सुसाइड भी सॉरी। किया इस वजह से। एक बच्चे ने आज या कल सुसाइड कर लिया उसी सब के सुसाइड चलते, का आई क्योंकि डोंट नो, उसमें से नहीं, ये हाँ, अभी वाला इंसिडेंट है जहाँ पे बच्चे को पकड़ा भी गया है, साइबर पुलिस हैज कॉट द चाइल्ड एंड ऑल। हाँ, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज दिस, आई मीन लाइक व्हाई डू यू थिंक चिल्ड्रन आर गेटिंग इनटू दिस सो मच दीस डेज? मतलब ये गर्ल्स को एक अगेन बिकॉज़ कमोडिटी दे के जैसे सोचना, what do you how do you सिंपल think सी we बात can है help दीदी, a child? एक बात नहीं, सी आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट पार्ट इन द टॉक, दैट हो ये रहा है कि बच्चा ये सारे रास्ते इसलिए अपना रहा है क्योंकि उसे घर में वो रिकग्निशन या उसका जो समाज है, उसका जो दायरा है, स्कूल, बच्चे, उसके फ्रेंड सर्किल और उसका घर के पेरेंट्स और बाकी लोग, वो उसको उतना समय, उतना अटेंशन, उतना वैल्यू, देखो समय का मतलब ये नहीं है। अभी क्या होता है, कई बार लोग मेरे से पूछते हैं कितना टाइम देना चाहिए बच्चों को। अरे कोई क्वांटिटी थोड़ी है टाइम, टाइम इज अबाउट क्वालिटी। आप क्वालिटी टाइम, अगर आपके पास, आप रास्ते चल रहे हो, किसी ने मुस्कुराकर आपको हेलो भी बोल दिया, तो वो क्वालिटी टाइम है आपके लिए, वो क्वालिटी मूवमेंट है आपके लिए, आपको एनर्जाइज कर देता है। तो वो क्वालिटी टाइम उन बच्चों को नहीं मिला है। So what they have started seeking is finding pleasure of life or happiness of life in creating excitement, and excitement has no limit। आप किसी और को तंग करो, बहुत सारे बच्चे स्कूल में क्या करते हैं, हमें याद है जब ये इंटरनेट का जमाना नहीं था ज्यादा, तो एक दूसरे को गाली देना, कॉलर खड़ा करना, सीटी बजाना, विस्लिंग करना, और ऐसे किसी को पुल डाउन करना, बुली करना, ये बहुत ज्यादा कॉमन तरीके होते थे एक्साइटमेंट क्रिएट करने के। अब ये और तरीके आ गए, एक गेम आ गया था बीच में भी, पबजी। अरे स्कूल चिल्ड्रन छोड़िए, ऑफिस वाले लोग हमारी आपकी एज के पागल हुए फिरते थे, खाना क्या बनाए, खाना बन गया, खत्म हो गया, उनको मतलब ही नहीं, वो अपना पबजी में लगे हुए। एक और भी पता नहीं मैं नाम भूल रहा हूँ, ब्लू वेल था या क्या था, जिसमें पीपल वर कमिटिंग सुसाइड, है ना। इस तरह से हमने ऐसे बहुत से तरीके बना लिए। इट्स नॉट अबाउट ओनली समवन्स लॉकर बीइंग दिस थिंग। ये बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हम देख सकते हैं जहां हम सिर्फ और सिर्फ, हमारी जनरेशन की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ये यंग जनरेशन, आई थिंक अंकुर जी क्वेश्चंस, हाँ, it's all about avoidance, it's all about poor rearing of the child। यहाँ जूम में अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं, बाकी फेसबुक पर हियर मी, तो अगर आप राइट, थैंक बताएं यू सर। क्या क्वेश्चन। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन आया है हाँ हाँ जी, जी सर, फेसबुक में क्वेश्चन आया है, सतीजा अनु हैज आस्क्ड व्हाट इज द इमीडिएट सॉल्यूशन एज द किड वांट्स टू यूज फोन व्हाइल ईटिंग फूड। तो क्या करे, बच्चा खाना ही नहीं चाह रहा है अनटिल अनलेस आप फोन उसको बच्चे को ना दो या फिर टीवी ना वॉच करने दो, तो हाँ, इस सिचुएशन में क्या करे? हाँ, ऐसी सिचुएशन में अभी क्योंकि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि हमने पहले से ही ऐसा एनवायरनमेंट बनाया कि बच्चा किसी तरह से खा ले, किसी तरह से मान जाए, और हमने ये भी उसे शो किया है कि दिन में कम से कम 500 बार हम फोन उठा के हाथ में घूमते हैं, इवन अपने टॉयलेट्स तक में ले जाते हैं। तो फोन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमोडिटी, तो वो उसको इंपॉर्टेंस दे रहा है, पहली बात। तो हमें पहले अपना फोन का यूजेज कम करना पड़ेगा। सडनली बच्चे को ये फील होना चाहिए कि हमारे से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी की भी नहीं है। इंपॉर्टेंस से मतलब एटलीस्ट जो बेसिक अटेंशन उसको चाहिए, और उसके साथ बैठिए, उसके साथ स्पेंड करिए टाइम। जब वो फोन खाने के लिए ठीक है अभी यूज करना चाह रहा है, बाकी समय में आर यू शेयरिंग स्टोरीज, आर यू शेयरिंग हैप्पी मोमेंट्स, आर यू टेकिंग अ वॉक विद योर चाइल्ड, आर यू जस्ट डिस्कसिंग समथिंग वेरी ब्यूटीफुल विद द चाइल्ड। अगर ये चीजें होने लगेंगी, सडनली ही और शी विल से एंड मेक आई कॉन्टेक्ट। 2 महीने के बच्चे को, नाउ दिस ब्रेन रिसर्च इज वंडरफुल थिंग साइंस इज डूइंग, दे हैव कंफर्म, 2 महीने का बच्चा ये सस्पेक्ट कर सकता है whether the eye contact being made by the parent is true, genuine or not। अगर आप सिर्फ झूठ मूठ में आंख मिला रहे हो उस बच्चे से, और आपका दिमाग कुछ और सोच रहा है, आपका मन कुछ और सोच रहा है, बच्चा पकड़ लेता है। जेन्युइन आई कॉन्टेक्ट इज अ वेरी गुड वे ऑफ बॉन्डिंग विद द पर्सन। तो अभी एकदम से तो नहीं छूटेगा। देखो अभी क्या एक तरह से एडिक्शन सा हो गया है, तो एडिक्शन छुड़वाने के लिए या कोई भी आदत छुड़वाने के लिए आदत पे नहीं काम किया जाता, एक पैरेलल लकीर खींची जाती है। अभी उसको जो बेसिक नीड्स हैं, आपके साथ समय बिताने की दीदी, आप वो बिताइए ज्यादा से ज्यादा। खाने के समय अभी वो फोन यूज कर रहा है, धीरे धीरे क्या होगा, वो छोड़ देगा फोन, खाने के समय भी छोड़ देगा, क्योंकि अब वो चाहेगा मम्मा तुम मुझे सुनाओ जो इसमें मेरे को दिखाई दे रहा है। बहुत एक रॉन्ग नोशन आ गया था बीच में कि जो फोन है इससे हम सीख सकते हैं, इससे बहुत लर्निंग होती है। अब तो साइंस प्रूव कर रहा है दैट सोशल लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट। बच्चा अगर फोन से कोई चीज सीख रहा है या स्क्रीन से सीख रहा है, तो उसकी लिमिटेड जाती है कैपेसिटी। तो इसीलिए भी याद रखना चाहिए, रीड बुक्स रादर देन रीडिंग बुक्स ऑनलाइन, रीड फिजिकल बुक्स, टेंजिबल बुक्स। आपको भी अगर पढ़ने का शौक है, कुछ करने का शौक है, फिजिकल का अलग महत्व है। आप जितना डिजिटली जाएंगे उतना प्रोडक्टिविटी भी कम होती है, एफिशिएंसी भी कम होती है, हार्म इफेक्ट्स भी आते हैं। इसीलिए अभी उसका खाना, उसे जो भी आदत बन गई है उसे वैसे ही खिलाइए, लेकिन साथ साथ एक पैरेलल स्ट्रीम डेवलप करिए बॉन्डिंग की। आप देखेंगे विद इन
1 वीक टू 2 वीक्स टाइम बच्चा आपसे बात करना चाहेगा, फोन से नहीं। आप करके देखिए और मुझे बताइएगा, या सुषा मैडम को या हमारी ऑनरेबल जो पल्लवी ये मैडम है, प्रियंका मैडम, उनको बताइएगा इनको सबको, पायल जी को और उनको, संमित्रा जी को, कि कैसा रिजल्ट रहा। 1 से 2 हफ्ते करिए आप बस, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। और कोई क्वेश्चन? दीदी मैंने गलती से आपको म्यूट कर दिया, सुषा दीदी आप अनम्यूट कर लीजिए एक बार। मैं कर देता हूँ, चलिए। There's another question from Ms. Sasmita Behra. वो पूछ रहे, can you please tell me how to build the confidence in a child of 5 years old? Apparently the child is 5 years old and doesn't seem to be having much of a confidence. So how does one build that? देखिए छोटी छोटी चीजों में बच्चे का हमारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है। देखो कॉन्फिडेंस आपको, जैसे हम लोग जॉब करते हैं ना, जो लोग पैसा कमाते हैं उन लोगों का कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा हाई होता है महीने के स्टार्ट में, क्योंकि उस समय सैलरी आई होती है। धीरे धीरे पैसा बैंक अकाउंट से कम होने लगता है, ईएमआई जाने लगती है, तो कॉन्फिडेंस कम होने लग जाता है। कहने का मतलब ये है, कॉन्फिडेंस इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट विद फीलिंग ऑफ एबंडेंस। जब आपके पास कुछ होता है एबंडेंस में, तो आपको अच्छा लगता है, तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, अब मेरे हाथ में मुट्ठी में दुनिया है, मेरे साथ मेरा इतना वो है। सबसे ज्यादा एबंडेंस आपको फील होता है जैसे किसी शिष्य को, अगर गुरु शिष्य की परंपरा में आप हो, तो उसके गुरु के प्रति उसके समर्पण से, उसके गुरु के निष्पक्ष उसके तरीके से, और घर में माता पिता गुरु हैं, स्कूल में टीचर गुरु है, तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्फिडेंस डेवलप करने में ये बनती है टू हेल्प द चाइल्ड फील कि इमोशनली द चाइल्ड हैज एबंडेंस इन हिम और हर। उसके पास असीम क्षमताएं हैं, उसके पास असीम संभावनाएं हैं। कलाम के पास क्या सुविधा थी सोचो ना, लेकिन उसकी माँ ने उसे एबंडेंस दिया। गांधी की माँ ने उसे सत्याग्रह करना सिखाया। गांधी ने कहा मैंने अगर व्रत रखना सीखा है, उपवास करना सीखा है, तो अपनी माँ को देखता था। हम अपने कंडक्ट से, डू नॉट वरी इफ द चाइल्ड इज नॉट लिसनिंग टू यू, वरी दैट द चाइल्ड इज वाचिंग यू। बस आप अपने कंडक्ट में कॉन्फिडेंस लाइए, कहीं वो देखता होगा कि मम्मी के अंदर भी कॉन्फिडेंस है, पापा में भी कॉन्फिडेंस है, आ जाएगा उसमें, खुद आ जाएगा। और ये जो इमोशनल बॉन्डिंग है रिलेशनशिप की, इट वोंट हैपन, क्विक फिक्स नहीं होगा। क्विक फिक्स का भी एक तरीका है, वो मैं अभी मेडिटेशन में करवाऊंगा, लेकिन वो भी एक पूरी जेन्युइनिटी के साथ जब हम करते हैं तब आता है। तो अभी अपन जितना जेन्युइनली मेडिटेट कर पाएंगे उतना हम देखेंगे रिजल्ट आएगा। ऐसे ऐसे केसेस हैं जहां पर मैं आपको अगर 1 मिनट दूं, और एक स्कूल में हमने वर्कशॉप करी हुई पुणे में ही, मैं नाम नहीं लूंगा, वहां पर एक टीचर ने कहा कि मेरा बच्चा 18 महीने का है और जब मैं घर जाती हूँ पढ़ा के, तो मेरी बिटिया मुझे बहुत जोर जोर से पीटती है। वो मुझे पहले ऐसा स्लैप करती थी पैर पे, लेकिन बहुत जोर जोर से पीटती है। आप कह रहे हो कि गैजेट्स वगैरह छोड़ दो, मैंने सारे गैजेट्स छोड़ दिए, मैं घर जाके फोन छोड़ देती हूँ, सब कुछ छोड़ देती हूँ। एंड व्हेन आई रीच होम आई एम ओनली विद हर फॉर द नेक्स्ट 2 आवर्स। बहुत खेलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कहीं उसके अंदर से वो पहले मुझे खूब पैट करती है, तेज 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 तेज, और ऐसा लगता है मुझे कि वो बहुत एग्रेशन में है, वो बहुत कुंठा है उसके मन में। और वो सफोकेशन जब रिलीज हो जाता है तब जाके वो कहीं मेरे साथ खेलना शुरू करती है। ये 15-20 मिनट का एपिसोड डेली इंक्रीज हो रही है इसकी इंटेंसिटी। तो ऐसे में मैं कैसे हेल्प करूं अपने बच्चे को, मुझे ये बताइए। मैंने उनसे एक ही बात पूछी, दीदी आपकी प्रेगनेंसी के समय कभी भी आपके मन में ये विचार उठा क्या, विचार की शक्ति देखिएगा, वाइब्रेशन से कितनी शक्ति है, कभी भी आपके मन में ये विचार उठा क्या कि ये बेबी मेरी प्रोग्रेस में, मेरे डेवलपमेंट में एक हर्डल है? एंड शी सेड यस। कि मेरे को स्कूल छोड़ना पड़ा, मैटरनिटी लीव लेनी पड़ी, मुझे बहुत ये लगा कि आई एम अ प्रोग्रेसिव लेडी, माय प्रोग्रेस विल गो स्लो, मैं वाज आई प्रिपेयर्ड फॉर दिस प्रेगनेंसी और नॉट। तो इस तरह से मैंने एक, मेरे स्ट्रॉन्ग फीलिंग मेरे मन में आई थी जो मुझे आज भी याद है। तो मैंने कहा सोचो आपकी वो इंटेंसिटी जो थी ना, वो बच्चे को उसी समय ये कन्वे कर गई, यू आर अ हर्डल इन माई प्रोग्रेस। उस बच्चे ने तब से ये अपने अंदर सफोकेशन पाल रखा है कि मैं आपके लिए हर्डल हूँ, आई एम नॉट दैट वर्दी फॉर यू। अब आप तो भूल गए, आप तो ओवरगो कर लिए, आप तो आगे चल दिए, लेकिन वो बच्चे के अंदर वो मेंटल ब्लॉकेज अभी भी बना हुआ है। एक अभी मेडिटेशन कराऊंगा, उसमें उसी का समाधान उनको भी दिया था। एंड 4 दिन की हमारी वर्कशॉप थी, डे 1 को उन्होंने शेयर किया था, डे 4 जब फीडबैक शेयर किया तो शी सेड जस्ट इन 3 नाइट्स 3 रातों को मैंने ये मेडिटेशन किया है अपने बच्चे के साथ और उसके सबकॉन्शियस को हील किया है। And today when I was leaving home, she was waving her hands. She was very happy to see me going away from her. Earlier she used to cry कि मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो, लेकिन आज उसने खुशी खुशी मुझे भेजा। मैं और मेरे पति दोनों ने मिलकर मेडिटेशन किया है एंड आई कैन सी फिनोमिनल रिजल्ट्स। और बहुत प्यारा कपल है, बहुत अच्छा बच्चा है, सब ठीक है। तो कॉन्शियसनेस के लेवल पर, चेतना के लेवल पर, आत्मा के लेवल पर जाके काम करते हैं तो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। जो भी क्वालिटी आपको अपने बच्चे में बढ़ानी है, डू दिस एवरी नाइट 5 मिनट्स। आप देखेंगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये करते समय आपकी स्टेट ऑफ बीइंग जो जितनी प्योर होगी उतना फास्ट रिजल्ट्स आते चले जाएंगे। बच्चे के साथ आपका बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगा, बच्चे के एडिक्शंस छूटेंगे, बच्चे के अंदर जो स्ट्रेंथ आप बढ़ाना चाहते हो, डिवाइन क्वालिटीज बढ़ाना चाहते हो, बढ़ेंगी।
और एक नई पर्सनैलिटी को, एक नए बिलीफ सिस्टम को, एक नए बिहेवियर को आप जन्म दे देंगे विदाउट काउंटरिंग इट नेगेटिवली। कुछ सुपर इम्पोज करने की जरूरत नहीं। एनी मोर क्वेश्चंस? Thank you, Ankurji. I think there are questions. We'll forward them to you later. Let us straight go to the meditation then. ठीक है, maybe you can share my email ID with them in case they are interested. Sure. You know, write down to us and we can together solve many such cases, because बच्चों का जीवन अगर अच्छा हो गया तो आने वाली जो जनरेशन है वो तो अच्छी होगी ही, आने वाला समाज तो अच्छा होगा ही, हमारा बुढ़ापा, आपका बुढ़ापा भी अच्छा हो जाएगा। हम एक ऐसे समाज में, सोचो आज अगर हम परेशान इतना ज्यादा हैं, कल ये सब चीजें ऐसी क्योटिक रही तो बुढ़ापे में हमारा आपका हाल क्या होगा, बहुत बुरा हो जाएगा। तो कहीं स्वार्थी होकर भी सोचो तो भी जरूरी है कम करना, और कहीं परमार्थी होकर सोचो समाज की दृष्टि से, बच्चे की भविष्य की दृष्टि से, तो भी बहुत जरूरी है करना। इसलिए आप सभी से निवेदन कि इसको बहुत सिंसियरली आप कर रहे हो, आप हो, यही सिंसियरिटी, बस थोड़े से सूत्र आपको चाहिए, वो हम लोग साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे जब जब अवसर मिलेगा, और जब आप चाहें तो पर्सनली 1-on-1 लेवल पर भी हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, आइए फिर एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं, हार्डली 5-7 मिनट लगेंगे, लेकिन प्री रिक्विजिट क्या है, 2-3 चीजों की बस। एक, थोड़ा सा शांत होकर बैठिएगा, हो सकता है घर में अभी बहुत सारी चीजें चल रही हो तो थोड़ा एक्सक्यूज ले लीजिए 2-4 मिनट का, क्योंकि ये सीख लीजिए और ये आपको करनी है डेली, नॉट ओनली फॉर योर चिल्ड्रन। किसी भी रिश्ते में आपका कोई विरोधी भी हो, दुश्मन भी हो, वो भी आप पर कुछ नहीं कर पाएगा और आप उसको भी हेल्प कर पाओगे कि वो बेटर बन सके। इट्स अबाउट म्यूचुअल इवोल्यूशन, इट्स नॉट अबाउट काउंटरिंग समथिंग, आई एम नॉट डूइंग अ ब्लैक मैजिक ऑन समवन। मैं भी ग्रो कर सकूं, आप भी ग्रो कर सको। फॉर एग्जांपल लेट्स से सुषा दीदी और मेरी नहीं बनती, हमारी वाइब्रेशंस मैच नहीं करती, एंड एवरी टाइम वेदर वी आर इन अ फैमिली और वी आर इन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टुगेदर और इन अ सोसाइटी एज नेबरहुड, वी आर नॉट गोइंग ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी। सी वी आर टुगेदर बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कर्मा, ये अकाट्य सिद्धांत है, आप माने चाहे ना माने। हमने हमारे जीवन में जो परिस्थितियां आ रही हैं वो कर्म की वजह से आ रही हैं, हमारे फल की वजह, फल वही आ रहा है। अब बच्चा मेरे जीवन में आया मुझे कुछ सिखाने के लिए, 9 महीने मैंने उसे पेट में पाला है, अपने घर में उसको लेके आया हूँ, इस दुनिया में लेके आया हूँ, तो अब ये बहुत स्ट्रांग बॉन्ड रहा होगा डेफिनेटली कार्मिक, इसीलिए हमारे थ्रू वो संतान इस दुनिया में आई। अब उसका इवोल्यूशन भी अच्छा हो, मेरा इवोल्यूशन भी अच्छा हो, कहीं भी हमारे अंदर सब में कमी रहती है, हो सकता है जाने अनजाने मुझसे कोई कमी रह गई हो, मेरे रिलेशनशिप को मैं बेहतर ना बना पाया हूँ, ऐसे में मुझे उस रिलेशन को अच्छा करने के लिए अपने को सेल्फलेस स्टेट में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, आइए मेडिटेट करते हैं। मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगा बहुत सिंपल सी, इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को आप एज इट इज फॉलो कर लीजिएगा, और जितना और एक्सटेंड करना चाहें अपने मन के खूबसूरती के आधार पर वो आप कर सकते हैं। आप 2 मिनट कर सकते हैं इसे, 20 मिनट कर सकते हैं, घंटों बैठे रह सकते हैं इसमें, इट्स योर चॉइस। थोड़ी देर के लिए सिर्फ अपने नेत्र बंद कर लीजिए, और सुषा दीदी मैं आपका वीडियो ऑफ कर दूं? हाँ ठीक है, थैंक यू। तो अब आप सिर्फ अपने आंखों को बंद कर लीजिए, आप जहाँ बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं, बिस्तर में बैठे हैं, जैसे बैठ जाइए बस एक जगह कहीं, और अपने फोन को अगर अपने से दूर कर सके, मतलब हाथ फ्री कर ले, और सिर्फ रिलैक्स होकर अपने हाथ दोनों गोद में रख लो आराम से। दोनों हाथों को इंटरलॉक करके भी रख सकते हो, एक के ऊपर एक भी रख सकते हो, लेफ्ट हैंड नीचे राइट हैंड ऊपर, ऐसा एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाओ, कंप्लीट रिलैक्सेशन। ठीक है, मैं कोई बहुत मेलोडियस मेडिटेशन नहीं करवाने जा रहा हूँ, मैं आपके दिमाग को रीवायर करने की कोशिश करने वाला हूँ, और ये एक अकाट्य सूत्र है। मैंने आज तक जितने लोगों से बताया है और जिन्होंने इसको सही तरीके से फॉलो किया है, ये हमेशा हुआ है, क्योंकि ये मेरा फॉर्मूला नहीं है, ये मेरे गुरुदेव का दिया हुआ फॉर्मूला है। मेरे को जब इससे हेल्प मिली तो मैंने औरों को शेयर किया, औरों ने किया, और हमेशा 100% रिजल्ट मिला। लोगों की शराब छूट गई, एक पति अपनी पत्नी को मारता था, पत्नी ने ताज्जुब किया कि 4 दिन बाद उसके अंदर माफी मांगने का भाव पैदा हो गया। ऐसे ऐसे सीवियर रिलेशनशिप इश्यूज में भी इसने काम किया है। तो हमारे को तो सिर्फ इतना है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस जग जाए, उसका एडिक्शन कोई है तो कम हो जाए, हमारे से प्यार से बात कर ले, इतना ही तो चाह रहे हैं। ठीक है, हो जाएगा। आइए, तो यही उस माँ ने किया था जिसकी 18 महीने की बच्ची उसे पीटती थी, वही आपसे करवा रहा हूं। नेत्र कोमलता से बंद, सारा ध्यान सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी सांस पर ले जाओ, ऑब्जर्व करो अपनी सांस को, धीरे धीरे सांस अंदर आ रही है, धीरे धीरे जा रही है, ताकि आपका मन इस वर्तमान क्षण में आ सके, सारी बातें भुलाकर सिर्फ कुछ पल के लिए सिर्फ सांसों को देखिए। Slowly inhale and slowly exhale. Just observe your breath. Watch it. Now visualize your child in front of you. Not because he or she is your child, but as a soul. एक आत्मा जो आपके माध्यम से इस संसार में आई, कर्मों के फल के नतीजे के रूप में आपके जीवन में आई।
आप दोनों का एक दूसरे से कुछ लेन देन है। ट्राई एंड विजुलाइज, बंद आंखों से देखने की कोशिश करिए, अंतर मन में अपने बच्चे को देखिए और सामने वो आपके बैठा है, ऐसा कल्पना कीजिए। जिस भी एज का बच्चा हो, छोटा टॉडलर हो चाहे टीनेजर हो, बस उसे कल्पना करिए सामने आपके बैठा है। एज अ सोल, एज एनर्जी, energy can be transformed, and this is the attempt to transform that energy into something more beautiful. Now I am participating in this not as a parent, but as a companion soul, two souls being together on a same journey, the journey of self evolution. पहले मन ही मन अपने उस कंपेनियन सोल से, जो आपके बच्चे के रूप में आपके जीवन में आया है, उससे क्षमा मांगिए। Ask for forgiveness. I'm so sorry. I valued something else above you. I'm so sorry. I could not attend you when I could have. I'm so sorry, dear soul. You needed me. I was not for you. I was indulged somewhere else. पूरी श्रद्धा से, जब एक सॉरी का फीलिंग आना चाहिए, एक गिल्ट का फीलिंग आना चाहिए। गिल्ट इज गुड, इट कैन प्रोग्रेस, इट विल हेल्प अस प्रोग्रेस। तो गिल्ट इज गुड, पूरे गिल्ट के साथ में फीलिंग लेकर आइए कि आप अपने बच्चे से क्षमा मांगें। मैं कर सकता था, मैंने नहीं किया। I'm very sorry. But here is a promise. From now on, with a new understanding of our relationship, with a new understanding of what you need, a very basic need of being trusted, a very basic need of being respected, of being loved, of being acknowledged and attended, of being admired, of being accepted. Sometimes I did not even accept you, though I have given birth to you, but as a parent, I accepted something else over you. I'm so sorry. And here is a promise that from now on, I'm there for you. Without any conditions, without any frills, without any this thing that whether you are doing it, whether you are there for me or not, I'm always there for you. I'm always there for you. बार बार यही भावना, बार बार यही मन भाव लेकर आइए। मन से प्रार्थना, सहना भवतु सहना भुनक्तु सवीर्यम करवावहै। हम दोनों का साथ साथ विकास हो, एक साथ हम सीखें, एक साथ बढ़ें, एक साथ ऊंचे उठें, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, हम अधूरे हैं एक दूसरे के बिना। हमारी आंतरिक क्षमता का विकास हो, भीतर से एज अ पेरेंट, एज अ सोल हम विकसित हों, हमारी स्ट्रेंथ बढ़े, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ताकि हम अपने बच्चे को वही स्ट्रेंथ कन्वे कर सकें। पेरेंटिंग बोझ नहीं बनना चाहिए, एक उत्सव होना चाहिए। ये रिश्ता जीवन का सबसे खूबसूरत पल होना चाहिए। इसके लिए हमने बहुत तप किया। 9 महीने एक संतान को गर्भ में रख के इस दुनिया में लाए, बचपन से लेकर चलना सिखाने से लेकर बोलना सिखाने से लेकर हर चीज के लिए उसके लिए मदद करने की कोशिश करी। फिर कहाँ क्या कमी रह गई, क्या छूट गया? कुछ था जो बहुत बेसिक था, जो हम छोड़ दिए। हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। भावना करें सूर्य का दिव्य तेज, उगते हुए सूर्य का दिव्य तेज, स्वर्णिम सूर्य, गोल्डन लाइट, क्योंकि सूर्य की जो गोल्डन लाइट है ना, उसमें सारी शक्तियां समाहित हैं। सूर्य से ही प्राण है, धरती पर जीवन है। आप अपने बच्चे को उसी सूर्य से थोड़ी सी रोशनी उधार लेकर दे दीजिए। भावना करें उगते हुए सूर्य का प्रकाश अपने बच्चे के चारों तरफ एक गोल्डन सर्कल ड्रॉ कीजिए। योर चाइल्ड इज प्रोटेक्टेड इन दैट गोल्डन सर्कल। द डिविनिटी ऑफ सन, who is the very fundamental source of life on this planet, is protecting. In what we eat, what we drink, what we breathe, it is sun, it is sunlight. I am offering this to you, my child. Maybe I could not offer you my love, my unconditional compassion, my kindness, my forgiveness, but here I offer to you the light of sun. I wish you a bright future.
Fill this whole surrounding circle with golden light as much as you can. Every night, practice it. You may now just rub your palms together, and if you like, you can come out of this feeling. Although we could have extended it much, I'm limiting it to few minutes because time doesn't allow us. But आप इसे बैठिए करिए, आपका बच्चा सो जाए, सबसे अच्छा समय है जब बच्चा सो जाए, because the subconscious can be rewired in the night time. आप उस समय पर, your day starts the night before. बच्चे को 10-15 मिनट हो गए सोने के बाद में, उसका कॉन्शियस माइंड थोड़ा लेस एक्टिव हो, बाहर की आवाज़ों से तकलीफ नहीं हो, हल्का हल्का सॉफ्ट वॉइस में, बच्चे को अपनी माँ की सॉफ्ट वॉइस बहुत अच्छी लगती है, अपने पिता की सॉफ्ट वॉइस बहुत अच्छी लगती है. बोथ ऑफ यू इफ यू कैन डू इवन बेटर. एंड बिलीव मी, आपके बच्चे के साथ में, आपके रिलेशनशिप में, बच्चे के साथ कोई इशू नहीं है, इस रिलेशनशिप में अगर आपको कोई इशू नजर आता है और आप चाहते हो कि उसे रिजॉल्व करना है, या किसी और भी रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ हैं, सास ससुर के साथ में, बच्चों का व्यवहार है, माता पिता के साथ में है, ऑफिस में, कहीं भी, उस सोल को विजुलाइज करो बस, और उससे क्षमा मांगो. कार्मिक संबंध होने के नाते कहीं ना कहीं हमारे से भी गलती हुई है, तभी हम लोग इस ऐसी सिचुएशन में है जहां पर खींचातानी हो रही है. क्या दिक्कत है, अपना ईगो छोड़कर हम माफी नहीं मांग सकते? वैसे तो सामने जाके मांग ले तो और अच्छा, लेकिन वो नहीं तो कम से कम हम एकांत में बैठकर शांति से ये कर लें. आप हकीकत मानिए, अप्लाई दिस ऑन एनी पर्सन, बट नॉट विद द फीलिंग ऑफ कि अरे हमारा पीछा छूटे, बट विद द फीलिंग ऑफ हम दोनों मिलके पहले सॉरी, मुझसे जो भूल हुई उसके लिए सहना भव, तो हम दोनों मिलकर ग्रो करें, दोनों मिलकर एक दूसरे का साथ दें. ऐसी भावना के साथ जब हम करेंगे, निश्चित रूप से बहुत सुंदर रिजल्ट आएंगे. रितेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं या बाई मिस्टेक हैंड रेज हो गया है? प्लीज बताइए. आप अगर कुछ कहना चाह रहे हैं तो मैं आपका लोअर हैंड किया मैंने, फिर से रेज कर दीजिएगा तो मैं आपको फिर से अनम्यूट करता हूँ. हाँ, एक मेरे पास रितेश जी हैं यहाँ पे, रितेश नायर जी. रितेश जी, आप खुद को अनम्यूट मैंने आपको कर दिया है, आप कुछ कहें जरा, मैं सुनूं. डू यू हैव अ क्वेश्चन? रितेश नायर जी हैं हमारे साथ शायद. डू यू वांट टू से समथिंग? आई कैन. नो भैया. अच्छा ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मे बी बाय मिस्टेक. हाँ जी, over to Susha ji, over to Evergreen Public School. Such a beautiful family. I've been there once. I remember it was around 2 years ago. My unfortunate that I couldn't meet the whole staff, but yes, there were some inspections going on, and the school was undergoing a lot of CBSE work. So trainings were on, and some teachers. I do remember one named Naina Malik because she's still in touch. I don't know if she's still there with EPS or not, but बहुत सारे टीचर्स के साथ में, लगभग 40-50 टीचर्स के साथ में 4-5 घंटे बैठे, खूब मस्ती करी, खूब बातचीत करी, और बहुत सारी ये चीज़ें देखी. And I really appreciate when schools take such initiatives and don't leave it only to parents. I congratulate EPS, I congratulate the founders, their vision, and Priyanka ma'am, who is leading it from front, Mansi ji, her sister, and the whole fraternity of EPS school, Evergreen. मेरे को बहुत अच्छा लगा. आत्मनः वृद्धि, सारी बात खत्म हो गई एक दो शब्दों के अंदर, वेद का 2 शब्द और सारी बात खत्म. बस कहीं भी करना तो यही करना दोस्तों, आत्मनः वृद्धि, अपनी आत्मीयता की वृद्धि करना, एक अच्छे खूबसूरत इंसान बन सके और औरों को बनाते चले. जो आप हैं वही बनेंगे. स्वामी विवेकानंद कहते थे बी एंड मेक. जो बनाना है वो पहले बनो, और यही एक ही बात में सूत्र सारा समाया हुआ है. जो हमें लाना है परिवर्तन, वो पहले अपने अंदर लाना है, फिर किसी और में. ओवर टू सुषा जी. मैं बोलूंगा तो बोलता रहूंगा. इट्स ऑलरेडी 1 hour 33 minutes. Thank you so much, Mr. Mehta. I mean, in fact, I'll call you Ankur. You're so much younger to me. Yes. It's a very, very beautiful session, a very invigorating session, and I'm sure parents, teachers, and the entire Evergreen family must have really, really enjoyed and learned a lot. I especially, really liked your the way you said to understand your child better and grow together, which is so very vital. And even the fact that you spoke about Vidyalaya and Shikshalaya, that's something even I've never thought about, So that was quite an eye opener, the way you spoke about the school being a Shikshalaya and not a Vidyalaya. And being a good companion, and the way you summed up that parenting is actually a celebration. It's so true. This is something that we all need to remember, that parenting is a celebration and we are all in it together. So let us use this lockdown period to make this celebration the best possible, so that when we come out of this lockdown, even we in the school, we are able to see absolutely a different child coming, because with that strengthened bond the child is going to share
I'm sure that we as a team, you and we, the school fraternity as well as the parent fraternity, our bond is going to become even more stronger and a greater celebration to come. Thank you so much, Ankurji. Look forward to more sessions with you like this. Thank you very much for everyone who has come on the Facebook Live and the Zoom session. Thank you for joining in. God bless you all and love you all. Thank you. Thank you so much. Have a wonderful weekend. And as I confirmed earlier, you can reach out to us any moment. Um, the school can post one, email ID message on the Facebook so that you people can just revisit. Otherwise, it is reach us, REACHUS, reach us at the rate pauseandlearn.in. So that's very simple. And reach out to us in any scenario of life. We are just here to help in whatever little capacity we can. Thank you so much for giving this opportunity. Once again, special mention to Priyanka ma'am and Susha ji who conducted the session. Thank you. Thank you. God bless.